થી આવે છે અને ત્યાંનું મિશન ચાલે છે. આપણે આમાંના થોડાક આવ્યા હશે 2 વર્ષ પહેલાં એમનું ફક્ત એક જ લેક્ચર ગોઠવ્યું હતું, પણ એટલું બધાને આનંદ આવ્યો હતો કે પાછું એક્સટેન્ડ કરીને એમને બીજો લાભ આપ્યો હતો. આ વખતે પણ ઉત્તરાધન સૂત્ર વિશે બોલવાના છે અને વધુ માહિતી ગૌતમ પ્રભુને કહું કે એમના વિશે કંઈક થોડુંક એવું હોય તો કે. જય પ્રભુ, જય આપો. બેન પ્રભુનું ઇન્ટ્રોડક્શન તો એમના સત્સંગ જ છે. આપ એમના સત્સંગ સાંભળશો તો બહુ આપને પોતાને જ એમની સાથે ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ જશે. હું હવે રિક્વેસ્ટ કરું છું પ્રભુ તિલક કરવાનું. સમજીભાઈ તિલક કરશે એમને. જી હા જાઓ. આજના સત્સંગની શરૂઆત આપણે મંગલાચરણથી કરશું. હેતલ પ્રભુ. ઓમ નમો હરિહંતાણં. ઓમ નમો સિદ્ધાણં. ઓમ નમો આયર્યાણં. ઓમ નમો વજાયાણં. નમો લોય સવ સાહુણં. એસો પંચનમોકારં. સર્વ પાવપણાસણં. મંગલાણં ચૌવેસી. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો અરિહંતાણં. ઓમ નમો વજાયાણં. સિદ્ધાણં. નમો લોય સવ સાહુણં. એસો પંચનમોકારો. સર્વ પાવપણાસનો. મંગલાણં ચ સૌવેસી. પરમં હવૈ મંગલમ. અહો શ્રી સતપુરુષ કે વચનામૃતં જગહિતકરં. મુદ્રારૂ સત સમાગમ સ્તુતિ ચેતના જાગૃત કરમ. ગિરતિ વ્રતિ સ્થિર રખે દર્શન. માત સે નિર્દોષ है. अपूर्व स्वभाव के प्रेरक सकल सद्गुरु को सुह. स्वस्वरूप की प्रतीति अप्रमत संयम धारणं. पूरणपणे वितराग निर्विकल्पता के कारण. अंते अयोगी स्वभाव जोता के प्रकट करता रहे. अनंत अव्याबाद स्वरूप में स्थिति करावन हार है. सहजात्म सहजानंद आनंद धन नाम अपार है. सतदेव धर्म स्वरूप दर्शक
गुरु पारावार है, गुरु भक्ति से लहो तीर्थ पति पद, शास्त्र में विस्तार है। त्रिकाल जयवंत वर तो श्री गुरु राज ने नमस्कार है। एम परमी श्री गुरु राज के पद, आप परहित कारणम। जयवंत श्री जिन राजवाणी, करुदास उच्चारण। भवभीत भविक जीवने भावे, शुणे समझे सद है। श्री रत्न त्रयनी एकता, लहि सही सो निज पद लहे, लहि सही सो निज पद लहे। જય જગત. જય જગત. ભગવાન મહાવીરની અંતિમ દેશના. ભગવાન મહાવીરની અંતિમ દેશનાને આપણે બધા શ્રી ઉત્તરાધ્યન સૂત્રના નામથી ઓળખીએ છીએ. અને આ વખતે હ્યુસ્ટન જૈન સેન્ટરમાં આવવાનું થયું ત્યારે અમુક ટોપિક્સ બાબત ડિસ્કશન ચાલતું હતું. તો એ લોકોએ જ કીધું કે ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર બાબત અમને કંઈ સમજાવો. થોડા હિસ્ટોરિકલ ફેક્ટ્સ શ્રી ઉત્તરાધ્યન સૂત્રના બાબત જોઈને પછી આપણે આગળ અમુક વાત કરીએ. ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર એટલે ભગવાન મહાવીરની અંતિમ દેશના. આટલું જ કદાચ આપણને ખબર હશે, એનાથી વધારે કંઈ વિશેષ માહિતી નહીં હોય. ક્યારે આ ઘટના ઘટી? ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર ક્યારે બોલાણું? થોડું ઘણું આપણે ખબર જ હશે. ક્યારે? બોલો, જોરથી બોલો જરા. હા, બોલો ને. ખબર જ છે, આટલું તો બધાને જ ખબર હશે કે ભગવાનના નિર્વાણના 2 દિવસ પહેલાથી આ દેશના ચાલુ થઈ હતી. એટલે 48 કલાક 48 hours સુધી 16 પ્રહેર 48 hours સુધી આ દેશના એટલે આ ભગવાનનું પ્રવચન કહો ચાલ્યું. શરૂ થવાનો દિવસ દિવાળીથી 2 દિવસ પહેલા કયો દિવસ આવે? ધનતેરસ. એટલે બસ અહીંયા જરાક આપણે આપણી વોકેબ્યુલરીમાં ફેરફાર કરવાનો છે. એ ધનતેરસના બદલે હું બધા જૈન સેન્ટરમાં સમજાવું છું. આ આવ્યા અહીંયા લોસ એન્જલસથી, ત્યાં પણ કહીને આવી. એ ધનતેરસ નહીં, ધન્યતેરસનો દિવસ હતો. કારણ કે ભગવાનની અંતિમ દેશના હવે શરૂ થવાની હતી અને એનાઉન્સમેન્ટ થઈ ગયું હતું કે બસ અંતિમ દેશના ઇઝ અબાઉટ ટુ બી ધેર નાઉ. એટલે બધા લોકો જે પણ કંઈ કામ હતું બધું પતાવીને, બધું જે બી હશે દુકાન ઘર આદિનું જે કાંઈ કામ હતા એ બધા કામોને ઠેકાણે પાડીને ખૂબ ઉત્સાહપૂર્વક આખો દિવસ એ લોકોએ કામ કર્યું અને સાંજે વહેલા બધું શટડાઉન કરીને બધા દેશના સાંભળવા ગયા હતા. એટલે એ દિવસને જૈન પરંપરાએ ધન્યતેરસનો દિવસ કીધેલો કે આજના દિવસથી ભગવાનની અંતિમ દેશના ચાલુ થઈ. બટ ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ યર્સ, આટલા વર્ષો જતા જતા આપણે એને શું બનાવી દીધું? ધનતેરસ. હવે પાછું આજથી શું બનશે? ધન્યતેરસ. ભગવાનની અંતિમ દેશના શું કાળ હતો, એ શું સમય હતો? અંતિમ તીર્થંકર, જૈન શાસનના અંતિમ તીર્થંકર. અને બસ હવે અંતિમ દેશના એની શરૂ થવાની છે. લોકોના અંદરમાં કેવો ઉત્સાહ હશે! કેન યુ એવર ઇમેજિન ઓલ્સો? આપણે વિચારી પણ શકીએ કે કેટલો ઉત્સાહ હશે લોકોની ધર્મ પ્રત્યેની ત્યાગની લાગણીઓ ઘણી ઉત્કૃષ્ટ હતી. એટલે બધા લોકોએ પોતાની દુકાન આદિ કાર્ય કરીને, ઘર આદિ કાર્ય કરીને
સાંજ પડે 5 કે 6 વાગ્યાથી લગભગ ભગવાનની પાસે બેસી ગયા હતા. એ ધન્ય તેરસ એટલે કહેવાય છે કારણ કે ભગવાનની અંતિમ વાણીનો લાભ મુમુક્ષુઓને ત્યારથી મળ્યો. આજથી કોઈ પૂછે હવે એ દિવસ કયો તો શું કહેશું આપણે? ધન્ય તેરસ, નોટ ધનતેરસ. પાકું? થોડા ફેરફાર પોતાના આચાર વિચાર અને વોકેબ્યુલરીમાં કરવા પડશે કારણ કે જો એ આચાર વિચારથી આપણને આત્મ શાંતિનો માર્ગ મળવાનો હોત તો મળી ગયો હોત, પણ નથી મળ્યો મતલબ આપણી સમજમાં કંઈ ફેર છે. કઈ જગ્યા દેશના થઈ? પાવાપુરીની અંદર. પાવાપુરીમાં પણ હસ્તિપાલ રાજાનું મહેલ, એ હસ્તિપાલ રાજાના મહેલની અંદર આ દેશના થઈ છે. ભલે અમુક શાસ્ત્રોમાં એવું કથન પણ આવે છે કે અંતિમ દેશના સમોશરણમાં થઈ, પણ સમોશરણ આટલા કલાક સુધી કન્ટિન્યુઅસ ન ચાલી શકે એટલે થોડી વાર સમોશરણ હશે ને પછી દેશના થઈ હશે એવું માન્ય તો બી રાખી શકીએ, પણ 48 કલાક સુધી સમોશરણ એક સાથે ન ચાલે એટલે વધારે ઓથેન્ટિક વાત એ જ લાગે, વધારે વ્યાજબી વાત આપણને એ જ લાગે કે આ બધું હસ્તિપાલ રાજાના મહેલની અંદર જે અત્યારે જલ મંદિર છે, અત્યારે જે જલ મંદિરમાં આખું કન્વર્ટ થયેલું છે. 16 પ્રહેર એટલે 48 આવર્સ સુધી દેશના ચાલી. બોલવાવાળા કોણ છે? ભગવાન મહાવીર. અને સાંભળવાવાળા પણ બધા બહુ સારા શ્રાવકો, બહુ ઉદ્યમવંત એટલે જે એકદમ પુરુષાર્થી માત્ર મોક્ષ અભિલાષવાળા મુમુક્ષુ હોય ને એ લોકો બધા શ્રવણ કરવા આવેલા. ખાલી એમનેમાં ટાઈમ પાસ કરવાવાળા નહોતા આવેલા. જો સમોશરણ હોય તો તિર્યંચ અને દેવાદિની પણ હાજરી હોય, પણ સમોશરણ નહોતું એટલે પછી 18 દેશના રાજા, નાગરિકો, શ્રાવક, શ્રાવિકાઓ, સાધુ સંતો એ બધા એ દેશનામાં હતા. હસ્તિપાલ રાજાનો મહેલ ધન્ય તેરસના દિવસથી શરૂ થયેલી દેશના 48 hours ચાલવાની હતી. એ પહેલા ભગવાને જે સાંભળવા વાળું શ્રોતા વર્ગ હતું ને એને પ્રશ્ન કર્યો કે તમને કોઈ પ્રશ્ન છે તો તમે એ પૂછો. સીધું ભગવાને પોતે બોલવાનું શરૂ નથી કર્યું, પહેલા પ્રશ્નોત્તરી થઈ જે લગભગ 5 કલાક ચાલી અને એની અંદર 110 પ્રશ્ન પૂછાડા જે 55 પુણ્ય સંબંધી હતા અને 55 પાપ સંબંધી. પુણ્ય વિપાક અને પાપ વિપાક. એ રીતે કરીને શુભ અને અશુભ કર્મ કઈ રીતે બંધાય અને એના કયા ફળ હોય એ બધી વાતો ભગવાને સ્ટાર્ટિંગમાં ક્વેશ્ચન આન્સર્સના ફોર્મમાં ચાલી હતી. 110 પ્રશ્ન ઉત્તર પૂછાણા, એમાં લગભગ 5 કલાક ગયા અને એના પછી જ્યારે પૂછવાવાળા બધા થાકી ગયા કે હવે અમારી પાસે કોઈ પ્રશ્ન જ નથી પૂછવા માટે, ત્યારથી પછી ભગવાને પોતાની રીતે હવે એક એક કરીને વાતો બતાવવાની સ્ટાર્ટ કરી કે અંતિમ સમય છે, જેટલું બને એટલું બધું જ હું બતાવી દઉં, સાંભળવાવાળા શ્રોતાઓને બધું સમજાવી દઉં. અને જે ભગવાને કીધું 11 યા 12 વાગે પછીથી જે ઘટના ચાલુ થઈ એ જે જગ્યામાં કમ્પાઇલ થઈ, બધું આખું ભેગું થયું, એ શાસ્ત્રને આપણે શ્રી ઉત્તરાધીન સૂત્રના નામથી ઓળખીએ છીએ. આ સમજાવું? શ્રી ઉત્તરાધીન સૂત્ર એટલે ભગવાન મહાવીરની અંતિમ દેશના, એટલું જ નહીં એની આગળ પાછળ પણ આખી હિસ્ટ્રી છે. 55 ક્વેશ્ચન્સ પૂછાયેલા, 55 ક્વેશ્ચન્સ were for પુણ્ય વિભાગ અને 55 પ્રશ્ન હતા પાપ વિભાગ. 110 પ્રશ્ન અને એના પછી જે પૂછ્યા વગર જ ભગવાને બધું બોલવાનું શરૂ કર્યું એટલે એને અપૃષ્ઠ વ્યાકરણ કહેવાય છે. ભગવાનની અંતિમ દેશના એટલે અપૃષ્ઠ વ્યાકરણની રીતે ઓળખાય છે. કોઈએ પૂછ્યું નથી પણ ભગવાનને જે જે જરૂરી લાગ્યું એ બધું ભગવાને સામે કીધું. એટલી સરસ એ આયોજન હશે. હું તો આ વર્ષે લગભગ ઘણા જૈન સેન્ટરમાં જવાનું થયું અને વારે વારે ઉત્તરાધીન સૂત્રના વારામાં જ બતાવવાનું થાય છે. એટલીસ્ટ એટલી ભૂમિકા તો બોલતા જ એટલો ઉલ્લાસ આવે કે શું એ લોકો હશે, શું એ માહોલ હશે. એમાં ભગવાનની વાણીમાં એવું આવ્યું કે હવે આ કાર્ડને પૂરું થવામાં 3 વર્ષ અને 7.5 મહિના બાકી છે. ઓન્લી 3 years and 7.5 years left. આ કાર્ડ બદલાતો હતો ને, બસ ભગવાનનો સમય હતો અંતિમ ચોથા આરાનો લાસ્ટ સમય ચાલતો હતો. ભગવાને કીધું હજી મારા ગયા પછી 3 વર્ષ અને 7.5 મહિનામાં
આખો ચક્ર પલટો ખાશે ને પાછો વારો ચાલુ થઈ જશે. એ સાંભળીને બધા લોકોને અંદરમાં એટલા વીર્ય સ્ફૂર્તા કે શાસ્ત્રકારો અમુક ભાષ્યની અંદર તો એવું કહેવાય છે કે એ સભામાંથી કોઈ પણ નિયમ લીધા વગર બહાર નથી આવ્યું. સાધુના નિયમ હોય કે સાધ્વીના નિયમ હોય કે શ્રાવકના હોય કે શ્રાવિકાના હોય યા અમુક એકદમ કોઈ એકાદ અણુવ્રત પણ લીધા વગર કોઈ બહાર આવ્યું નહીં. એવો એ સભાનો ઉત્સાહ હતો. કારણ કે ખબર હતી કે કાળ બદલાવાનો છે, પાછા ભગવાનની પણ હાજરી વહી જવાની છે, ખતમ થઈ જવાની છે. એ પહેલા અમે બધું કંઈક ને કંઈક વ્રત નિયમ આદિની અંદર આવી જઈએ. એટલે કહેવાય છે, ભાષ્યમાં એવું લખાય છે કે એ સભામાંથી કોઈ પણ નિયમ લીધા વગર બહાર આવ્યું જ નહીં. અદ્ભુત હશે કે નહીં? તમે વિઝ્યુઅલાઇઝ બી કરી શકો કે નહીં એ સભાને? કે એમ જ કેન યુ થિંક અબાઉટ ઇટ ઓલ્સો કે સભા કેવી હશે? અને એના પછી તો ભગવાન 48 કલાક સુધી બોલ્યા અને અંતિમ 48 કલાક બોલ્યા અને 48 મિનિટ્સ શૈલેષની અવસ્થાનું જે અંતિમ એમનું હોય નિર્વાણની પહેલાનું 48 મિનિટની અંદર બધું સમેટો કરીને ભગવાન નિર્વાણ રાતના 12 વાગે દિવાળીના દિવસે. સમજવાનું એ છે કે ભગવાનના નિર્વાણના 48 કલાક પહેલા પણ એ બોલી રહ્યા છે, મૌન નથી થયા. એટલે બોલીને જે સત્સંગનો કે પ્રવચનનો કે દેશનાનો કેવો મહિમા હશે એ સમયમાં બી. ભગવાનના સમયમાં પણ દેશનાની કેટલી મહિમા હશે. ભગવાનને તો અંતિમ સમય છે, ભગવાને સમાધિમાં વયા ગયો હતો, પણ ન ભગવાન મહાવીર સમાધિમાં ગયા, ન ભગવાન બુદ્ધ. અંતિમ 48 મિનિટ પહેલા સુધી પણ ભગવાન વોઝ ઇન દેશના. એટલે સત્સંગ, જેને આપણે હવે સત્સંગના રૂપમાં ઓળખીએ કે પ્રવચનના રૂપમાં ઓળખીએ. એટલે પ્રવચન કે સત્સંગની કેટલી મહિમા હશે એ સમજાય છે કે નહીં? સમજાય છે? પ્રવચન એમ નહીં કીધું કે આ ભક્તિ કરી લેજો, આ પૂજા કરી લેજો, ચલો આટલા કલાક ધ્યાન કરી લો, એવું નથી કીધું ભગવાને. અંતિમ દેશના છે, લાસ્ટ ઓરા હતો ભગવાનનો, તો એમાં કેમ ધ્યાન નહીં કરાવી દીધું ભગવાને? કેમ ભગવાને કોઈ પૂજા વિધિમાં નહીં મોકલી દીધા કે એટલી પૂજા વિધિઓ કર્યા? નહીં. અંતિમ સમય સુધી પણ ભગવાનને એમ જ છે કે ના, જેટલું શ્રવણથી પ્રાપ્ત થશે ને એટલું બીજા કોઈ વસ્તુથી પ્રાપ્ત નથી થવાનું. એ સમય એવો હતો કે ભગવાને દેશનાઓ લખવાની ના પાડેલી. એટલે બધું જે પણ જ્ઞાન ટ્રાન્સફોર્મ થાય એ બધું શ્રવણ પરંપરાએ. એટલે આગમ જ્ઞાનને એક અપેક્ષાએ શ્રુત જ્ઞાન કહીએ. આગમને આપણે શ્રુત જ્ઞાન પણ કહીએ છીએ. શું કામ એને? કારણ કે બધું સાંભળીને લોકો લેતા, નોટ્સ નહીં બનાવતા. ત્યારે તમે કહેશો મેં અત્યારે બી નથી બનાવતા, પણ ફરક છે. અત્યારે તમે નથી બનાવતા તો મન અહીંયા ત્યાં છે, પણ ત્યારે તો લોકો નોટ્સ નહીં બનાવતા કારણ કે ભગવાનની આજ્ઞા હતી. અને નંબર 2, એટલા બધા જોડાયેલા હતા ભગવાનની સાથે કે જે ભગવાન કહે ને તરત જ બધું અંદરમાં ઉતરી જાય એવી લોકોની સ્થિતિઓ હતી. ભગવાન મહાવીરના સમયમાં ભગવાન બુદ્ધ પણ થયા, પણ બુદ્ધ પરંપરાની અંદર લખવાનો નિર્દેશ હતો. એટલે જ્યારે બુદ્ધ બોલતા તો સાથે લોકો લખી લેતા. પણ ભગવાન મહાવીરે ના પાડેલી, કારણ કે ભગવાનને એ મેસેજ આપેલો બધાને કે જ્યારે પણ જ્ઞાન લેવું હોય ત્યારે સાંભળીને લેવાનું, વાંચીને નહીં. ભગવાન પણ કેવડી હતા ને, એને પણ ખ્યાલ જ હશે કે આ બધું નહીં લખે તો આગળ જઈને શું થશે. આગળ જતા તો ઘણા બધું પછી વિચ્છેદ થઈ ગયું, પણ ભગવાને કીધું ના, જેને પણ જ્ઞાન લેવું છે એને શ્રુતથી સાંભળીને, શ્રવણ કરીને, it should be by the faculty of listening. એના બદલે અગર શાસ્ત્ર લખી લેશું તો કોઈ સાંભળશે નહીં. શું કરશે? વાંચીને શાસ્ત્રો સમજવાની કોશિશ કરશે, પણ સમજવાની ચેષ્ટા માટે બુદ્ધિ કોની ઉપયોગ કરે છે? પોતાની જ. એટલે કાંઈ પણ ઉલટા સીધા ઇન્ટરપ્રિટેશન શાસ્ત્રોમાં થશે. ભગવાને બહુ ક્લિયર મેસેજ આપેલો કે જે પણ ધર્મ બાબતની માહિતી, ધર્મ બાબતનો માર્ગ આગળ પહોંચવો જોઈએ એ માત્ર શ્રવણથી જ. એટલે ત્યારે ભગવાને લખવાની ના પાડી. પણ જેમ સમય આગળ જતો ગયો, થોડા વર્ષો પછી કંઈક ને કંઈક વાંધા પડે, કોઈને યા તો કોઈ પ્રાકૃતિક વાંધો આવ્યો. જેમ સૌથી પહેલું મોટું દુષ્કાળ પડ્યું લગભગ 12.5 વર્ષનું ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં.
ભગવાનના નિર્વાણના લગભગ 160 વર્ષ પછી, ભગવાનના નિર્વાણના 160 યર્સ પછી એક બહુ મોટો દુષ્કાળ ફેમાઇન આવ્યું. અને એ ફેમાઇન એવું આવ્યું દુષ્કાળ કે જે એ સમયના સાધુ સંતો હતા એ લોકો સમાજ ઉપર નિર્ભર હોય તો સમાજ એ લોકોનું નિર્ભરતાને એક્સેપ્ટ નહોતું કરી શકતું, કારણ કે પોતાને જ ખાવાના વાંધા હોય ત્યારે હવે સાધુ સંતોનું ભરણ પોષણ કેવી રીતે થાય? બહુ સ્વાભાવિક હતું કે એ સમયમાં એટલું ધીરે ધીરે કરીને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં જે મોટો દુષ્કાળ આવ્યો એની અંદર સાધુ સંતોનું ભરણ પોષણ જે સમાજે જે વિધિથી કરવું જોઈએ એ બધામાં ધીરે ધીરે હાનિ આવતી ગઈ, ન્યૂન થતું ગયું. અને એના કારણે એ સમયમાં ભદ્રબાહુ સ્વામી જે અંતિમ શ્રુત કેવલી હતા અને એમના શિષ્ય સ્થૂલીભદ્ર એ બંને નિર્ણય કર્યો કે આપણે અમુક શિષ્ય સમુદાય સાથે ભદ્રબાહુ સ્વામી સાઉથ તરફ વિહાર કરી ગયા અને અહીંયા સ્થૂલીભદ્ર આદિ અમુક સાધુઓ રહ્યા. મોટા મોટા સાધુઓના ટોળા હતા, હજારો સાધુઓના ટોળા હોય અને સમાજ પોતે જ દુષ્કાળમાંથી જતું હોય તો એનું ભરણ પોષણ થાય કેવી રીતે? એટલે સમજીને જ આચાર્ય અંતિમ શુદ્ધ કેવલી જે આચાર્ય ભદ્રબાહુ હતા એમને નિર્ણય કર્યો કે આપણે લોકો થોડા છૂટા પડીએ. એટલે એક શિષ્ય સમુદાયને લઈને, હજારોનો શિષ્ય સમુદાય લઈને સ્થૂલીભદ્ર ત્યાં જ રહ્યા નોર્થ તરફ અને ભદ્રબાહુ સ્વામી ક્યાં ગયા? સાઉથ મદ્રાસ તરફ ભદ્રબાહુ સ્વામીએ વિહાર કર્યો. 12 વર્ષ સુધી એ ફેમાઇન ચાલ્યો, એ દુષ્કાળ 12 વર્ષ 12 યર સુધી ચાલ્યું. ત્યાં સુધી બધાનું પોતપોતાનું આચરણની વ્યવસ્થાને બધી સ્થૂલીભદ્રના ગ્રુપની અંદર ચેન્જ થવા માંડી, કારણ કે જેમ જેમ દુષ્કાળ આગળ વધ્યો અને લોકો બધું હવે નહોતા સંભાળી શકતા સાધુઓને, એટલે સાધુઓના આચરણની અંદર થોડા ઘણા ફેરફાર લાવવા પડ્યા. સ્થૂલીભદ્ર તરફ ફેરફાર આવ્યા, પણ જે ઓલી તરફ ગયા, કોણ ગયું હતું? ભદ્રબાહુ સ્વામી. એકદમ ચુસ્ત હતા, એકદમ કટ્ટર. એ રીતે જે લોકોનું જે ભગવાનની પરંપરાએ ચાલતું હતું એ રીતે જ બધું ચાલતું રહ્યું. 12.5 વર્ષના આ દુષ્કાળ પછી પાછા બંને સાધુઓ ભેગા થાય છે, બંને ગ્રુપ્સ અગેન. ભદ્રબાહુ સ્વામી જે હજારો સાધુઓને લઈને વયા ગયા હતા અને આ તરફ સ્થૂલીભદ્ર, બધા ભેગા થાય છે તો જોવે છે કે આચરણની અંદર ફેરફાર આવી ગયો અને હવે મિંગલ અપ થવું એકબીજાની અંદર થોડું ડિફિકલ્ટ થવા માંડ્યું છે. સાધુઓની અંદર પણ પ્રશ્નો વધવા માંડ્યા છે આચાર સંબંધી, અને સૂત્રો પણ અમુક અહીંયા વિચ્છેદ પામ્યા સ્થૂલીભદ્ર પાસે, અને જે ભદ્રબાહુ સ્વામી પાસે હતા એ બધા સેમ એઝ ઇટ ઇઝ બધું ચાલતું હતું. એટલે અમુક લેવલ્સ ઉપર બધાના થોડા મતભેદ ચાલુ થયા. ત્યારે ભદ્રબાહુ સ્વામીએ પ્રથમ નિર્ણય લીધો, આ ભેદ ચાલુ કર્યો. પ્રથમવાર નિર્ણય લેવાનો કે ભગવાનની પરંપરાએ જે ચાલતા હતા એમાં સૌથી પહેલી વાર જે પ્રથમ ફાડો કહીએ ને, કોઈ ઝઘડા નહોતા, પણ અમુક હવે જે 12 વર્ષથી આ રીતે રહેતા હતા અને અમુક 12 વર્ષથી આ રીતે રહેતા હતા એ બંને હવે પાછા પેચઅપ નહોતા કરી શકતા. જેમ આપણે 5 વર્ષ બી તમે અમેરિકા રહ્યો ને તો તમે ઇન્ડિયામાં આવો તો તમને 5-10 દિવસ બી થોડું ટફ લાગે રહેવાનું, કારણ કે આખું વિચારનું ધોરણ, આચારનું ધોરણ બધું બદલાઈ જાય કે નહીં. એ જ રીતે આ લોકોને બી એ તકલીફ થઈ, એટલે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો અને બધા છૂટા પડ્યા. પણ એ છૂટા પડ્યા એ પહેલા એ લોકોએ આગમને શ્રુત પરંપરા પહેલી વાર કમ્પાઇલ પણ કરી લીધા. શ્રુતે હજી લખવાનું નહીં સ્ટાર્ટ કર્યું, ખાલી એ લોકોએ જે પણ કંઈ ભગવાનની વાણી હતી એને 1, 2, 3, 4 ક્રમમાં એ લોકોએ આગળ બધાને કહેવાની નિર્ણય કર્યો કે આ રીતે જ હવે આપણે સૂત્રપાઠ બોલવાના. પહેલા તો કોઈ બી રીતે બોલાતા હતા, પણ હવે એ લોકોએ કમ્પાઇલ કર્યું કે ના, પહેલા આ જ બોલાવવું જોઈએ, પછી આ, પછી આ, પછી આ, એમ કરીને બધા સૂત્ર કમ્પાઇલ કરતા ગયા. જેમ જેમ કાળ આગળ વધતો ગયો, કલયુગ હતું, દુષ્મ કાળ હતો, લોકોની બુદ્ધિ આદિ રાસ પામતી ગઈ. બુદ્ધિની શક્તિ જ એટલી નહોતી કે આટલું બધું યાદ રાખી શકે. એટલે ધીરે ધીરે આગમના મૂળ જે સૂત્ર હતા, જે ભગવાને બોલ્યું હતું ને દ્વાદશાંગી આવી, એમાંથી હવે ધીરે ધીરે વિચ્છેદ પામવા માંડ્યો. સૌથી પહેલા દ્રષ્ટિવાદનો વિચ્છેદ થયો અને એના પછી ધીરે ધીરે ઘણા મૂળ સૂત્રોની અંદર પણ કન્ફ્યુઝન્સ એન્ડ કોન્ટ્રાડિક્શન્સ ક્રિએટ થવા માંડ્યા. એટલે વારે વારે સભાઓ ભરાડી. લગભગ દર 150 વર્ષના અંતરાલે
આફ્ટર એવરી 150 યર્સ એક કોન્ફરન્સ એ લોકો કોલ કરતા અને પાછું બધું ભગવાનની જે પણ વાત હતી એને ઓરલી રિકમ્પાઇલ કરી જતા. એ ઓરલ રિકમ્પાઇલેશનમાં શું થતું કે 10 જણા ભેગા થયા છે અને ભગવાનના એક સૂત્ર ઉપર ચર્ચા કરે છે, તો 10 માંથી જે 9 ને માન્ય હોય ને 10 માંથી જે 10 ને માન્ય હોય ને એ રાખે અને એકને પણ માન્ય ન હોય ને એ કાઢી નાખે. કોઈને પણ માન્ય નથી આ સૂત્રનો આ અર્થ છે ને આ સૂત્રનો આ વિવેચન છે. આમ જેને 10 ને માન્ય હોય ને એ બધું એ લોકો કબૂલ કરતા અને બાકી જે એકને પણ માન્ય નથી, કારણ કે 10 પ્રશાંત આચાર્ય હતા બધા, તો એ એવી પ્રજ્ઞાવાળા લોકોને જ્યારે માન્ય નથી તો એ ધીરે ધીરે ડિલીટ કરતા ગયા. આમ 980 વર્ષ સુધી ભગવાનના નિર્વાણ પછી 980 યર્સ સુધી શ્રુત પરંપરાએ જ બધું ચાલતું રહ્યું. 980 યર્સ પછી કોઈ એવી ઘટના ઘટી એકવાર 980 વર્ષ પછી એક એવી ઘટના ઘટી કે જેના કારણે એ સમયના જે આચાર્ય હતા દેવાધિગણી શમાશ્રમણ, એમને એ નિર્ણય લેવો પડ્યો કે હવે આગમોને રિટન ફોર્મમાં આપણે લાવવાનો સમય આવ્યો છે. અને ખૂબ જ્ઞાની હતા અને આચાર્ય પદે હતા એ સમયમાં. બીજા બધા આચાર્યોને ઉપાધ્યાયોને બધાની કોન્ફરન્સ બોલાવી અને નિર્ણય કર્યો કે જે રીતે મતિ આપણી નબળી પડતી જાય છે તો આ શ્રુતનું જે જ્ઞાન આપણને ભગવાનથી મળ્યું છે, લેટ્સ રાઇટ ઇટ ડાઉન. એટલે ભગવાનના નિર્વાણના 980 વર્ષ પછી 980 યર્સ પછી લખવાનું કામ ચાલુ થયું. એમાં આપણે પોતે જ વિચારી શકીએ છીએ કે કેટલું બધું વિચ્છેદ પામ્યું, કેટલું. અને એમાં પણ જેમ આપણે કીધું કે 10 આચાર્યોની કોર ટીમ બેઠી હોય અને 10 માંથી કોઈ એકને પણ માન્ય ન હોય એ વાતને ધીરે ધીરે હટાવતા ગયા. આમ કરીને જે 980 યર્સ પછી જે રિટન કમ્પાઇલેશન શરૂ થયું એમાં જેને મૂળ સૂત્રની જગ્યા આપી એ શ્રી ઉત્તરાધન સૂત્ર. વર્ષો સુધી મૂળ સૂત્ર એટલે જે બધાને વાંચવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. વર્ષો સુધી આચરણ સૂત્ર થી વાંચનની શરૂઆત થતી. વર્ષો સુધી કેટલાય 200 વર્ષ થઈ ગયા. આચરણ સૂત્ર મૂળ સૂત્ર જ હતો એ પણ ત્યાંથી વાંચનની શરૂઆત કરવાની આજ્ઞા હતી. પણ એના પછી જેમ જેમ કાળ બદલાણો તો 10 વૈકાલિક સૂત્રથી વાંચનની શરૂઆત થઈ અને હવે પાછો કાળ બદલાણો છે તો હવે શ્રી ઉત્તરાધન સૂત્રથી આ વાંચના ચાલુ કરવાની આજ્ઞા છે. એટલે એ સમયમાં જ્યારે કમ્પાઇલ થયું ત્યારે આચરણ સૂત્ર વોઝ અ ફોરમોસ્ટ કે એક આચરણ થી શરૂઆત કરો એમ તો એમાં જ બધું આવી ગયું અને જો એમાં તમને બધું માર્ગ મળી જાય તો ડોન્ટ ગો બિયોન્ડ. પણ અગર નથી મળતો તો આચરણ પછી બીજા વાંચો. પણ એના બી 200 વર્ષ પછી 10 વૈકાલિકે પ્રધાન સૂત્રનું સ્થાન લીધું અને એના પણ લગભગ 400 વર્ષ પછી લાઈક અત્યારનો જે સમય છે ઉત્તરાધ્યન સૂત્રએ મૂળ સૂત્રનું પ્રધાન સૂત્રનું સ્થાન પ્રાપ્ત કર્યું. એટલે આપણે લોકો ઉત્તરાધ્યન સૂત્રના સત્સંગ માટે આટલા બધા ઉત્સાહિત હોઈએ છીએ. અને દિલ્હીમાં લાસ્ટ યરથી લગભગ હવે 10 મહિના થયા, 10 મહિનાથી શ્રી ઉત્તરાધ્યન સૂત્રના સત્સંગો ચાલી રહ્યા છે. ભગવાનની વાણી અત્યંત સાયન્ટિફિક, અત્યંત લોજિકલ. એ ઉત્તરાધ્યન સૂત્રના ટોટલ 36 અધ્યયન થયા. ભગવાને એવું નહોતું બોલ્યું કે આ હું ચેપ્ટર 1 બોલું છું, આ હું ચેપ્ટર 2 બોલું છું, એવું ભગવાને નહીં કીધેલું. પણ જ્યારે આચાર્યોએ સંકલના કરીને એને ગોઠવ્યું બુકની ફોર્મેટમાં ત્યારે એના આવી રીતે એક એક કરીને અધ્યયન થયા છે. ઉત્તરાધ્યયન નામ ઇટસેલ્ફ કેટલું સુંદર છે. ઉત્તર પ્લસ અધ્યયન. ઉત્તર એટલે પાછળની અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરવા માટે જેનું અધ્યયન એટલે અભ્યાસ, જેનો અભ્યાસ અતિ આવશ્યક છે એનું નામ છે ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર. અને સૂત્ર એટલે શું? જેમાં શબ્દ ઓછા હોય અને અર્થ વધારે હોય એને સૂત્ર કહેવામાં આવે છે. એટલે શબ્દ ઓછા હોય તો ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર પણ આટલું જાડું છે ને આટલું મોટું છે પણ તોય જ્ઞાનીઓ કહે છે શબ્દ ઓછા છે, એક એક શબ્દનો વિસ્તાર કરીને સમજવાની જરૂર છે. એટલે એક એક શબ્દનો ગુરુગમે વિસ્તાર કરશું ત્યારે જ આપણને ખબર પડશે કે આ સૂત્રોના શું મિનિંગ છે.
ઉત્તરાધ્યયન સૂત્ર એટલે ઉત્તર અવસ્થાને પાછળની દેહની પાછળ જે આત્માની અવસ્થા છે કે જે અંતિમ સૌથી ઊંચી અવસ્થા છે એનો અભ્યાસ કરવા, એના સુધી પહોંચવા માટે જે અધ્યયનની અભ્યાસની જરૂર છે એ આખું જ ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં આવી જાય છે. જે રીતે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની પણ અલગ અલગ વ્યાખ્યાઓ આવતી ગઈ, એ અલગ અલગ વ્યાખ્યાઓ અને અલગ અલગ કમ્પાઇલેશન્સની અંદર ઘણું બધું સ્કીપ ઓફ થતું ગયું, ઘણું બધું જતું રહ્યું, તો પણ બે અધ્યયન એવા છે આઉટ ઓફ 36, બે અધ્યયન એવા છે જે મોસ્ટ ઓથેન્ટિક છે, એટલે એની અંદર ફેરફાર મિનિમમ થયો છે, યા કહો તો નથી થયો. 36 માંથી 34 અધ્યયન 34 ચેપ્ટર્સ એવા છે જેમાં ખૂબ ફેરફાર થયા છે, પણ ઓન્લી 2 અધ્યયન એવા છે કે જેની અંદર યા તો ફેરફાર નથી થયો, યા આપણે એમ ન કહી શકીએ કે ફેરફાર નહીં થયો હોય, તો હું એમ કહું કે મિનિમમ ફેરફાર થયો છે. અને બે અધ્યયન છે ચેપ્ટર 2 અને ચેપ્ટર 29. બે અધ્યયન. અધ્યયન 2 એટલે પરિશહ અને અધ્યયન 29 એટલે સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ. એમાં ચેપ્ટર 2 જે છે પરિશહ, એ ખાસ સાધુઓને લક્ષ્યમાં રાખીને સાધુઓનું ને કેવા કેવા પરિશહ આવે અને કયા પ્રકારે એ લોકોએ સહન કરવું, સહન કરવા સમયે શું માનસિકતા હોવી જોઈએ, એ આદિ જે પણ વાત છે એ બધી ચેપ્ટર 2 માં છે. અને ચેપ્ટર 29 એટલે સમ્યક્ત્વ પરાક્રમ એ સાધુ અને શ્રાવક બંને માટે ઇક્વલ ઉપયોગી છે, કારણ કે સમ્યક્ત્વ તો સાધુને થાય તો શ્રાવકને પણ થાય ને. તો એ બંને માટે કઈ રીતે એ લોકોએ માર્ગને સમજવો, કઈ રીતે માર્ગ પર ચાલવું, એના જેટલા પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે એ ચેપ્ટર 29 સમ્યક્ત્વ પરાક્રમની અંદર આપ્યા છે. અને સમ્યક્ત્વ પરાક્રમમાં એ 73 સૂત્રોની ફોર્મમાં આપ્યા છે, ઓન્લી 73 સૂત્ર. એમાં એમ જોવો તો આખો મોક્ષ માર્ગ આવી જાય છે. અમારે તો 10 મહિનાથી આના ઉપર જ સત્સંગ ચાલે છે. કયા ચેપ્ટર પર? ચેપ્ટર 29. કારણ કે એમાં જ એટલું સમજવાનું છે, અને 73 સૂત્રની અંદર 73 સૂત્રમાં ભગવાને બધી જ વાતો કરી દીધી છે, બધી જ વાત. બસ એને સમજવાનું ડાયમેન્શન શું એ ગુરુગમથી સમજવું પડશે. અત્યાર સુધી કોઈ પ્રશ્ન તમને? અત્યાર સુધી? કારણ કે પછી હવે ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રની અંદર પ્રવેશ કરું. આ તો બધી હજી ભૂમિકાઓ ચાલે છે. એની ક્વેશ્ચન, કોઈ પ્રશ્ન? अच्छा, थोड़ा इंग्लिश में भी बोलना है. इंग्लिश, हिंदी, थोड़ा इंग्लिश में बोल जाओ. If there is a very difficult Gujarati word, Okay. You may ask me. You are. Says in this speaking. आप अरे आप कहो तो मैं पूरा हिंदी में बोलूं, क्योंकि मैं तो ज्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हूँ. ये तो गुजराती में यहाँ के बोलती हूँ. हिंदी is okay with everybody? Is हिंदी ओके विद एवरीबॉडी? क्या मैं हिंदी में बात कर सकती हूँ? थोड़ा इंग्लिश ले जाओ. थोड़ा इंग्लिश. એટલે ગુજરાતી વાળાને હિન્દી ઓકે છે ને? हाँ ओके जाओ. गुजराती वाળાને हिंदी समझाया છે. हिंदी पिक्चर જોતા હોય ને. ओके, तो હું हिंदी અને ઇંગ્લિશમાં રાખું? हाँ रखो. ओके. भगवान महावीर लास्ट डिस्कोर्स, लास्ट डिक्लेरेशन that lasted for 48 hours. ये सब तो समझ में आ गया होगा? ये सब तो समझ में आ गया. शुरू हुआ वो दिन धन्यतेरस, खत्म हुआ वो दिन दिवाली, दीपावली. અને એક તરફ ભગવાન મહાવીરને નિર્વાણ, બીજા તરફ ગૌતમ સ્વામી કેવલના. એટલે ભગવાન મહાવીર he handed over his legacy to Sudharma Swami, not Gautam Swami. सुधर्मा स्वामी. एंड नाउ व्हाटएवर जो कुछ भी इस उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर लिखा हुआ है उसमें मैक्सिमम इस तरह से है. सुधर्मा स्वामी ने नेक्स्ट शिष्य जम्बू स्वामी को किस तरह से बताया कि भगवान जब थे तब वो ऐसा बोलते थे, ऐसा कहते थे, इस प्रकार समझाते थे. इस तरह से पूरी लेगेसी आ गई. भगवान के जाने के 160 इयर्स के बाद, वापस जस्ट रिकैप कर रही हूँ, 160 इयर्स के बाद फर्स्ट जो पार्टीशन हुआ ये जैन फिलॉसफी के अंदर स्थूलीभद्र और भद्रबाहु स्वामी के बीच, ड्यू टू वर्स्ट फेमाइन कंडीशंस, जो इतनी बुरी उस समय की फेमाइन कंडीशंस थी उस कारण. उसके बाद वर्बल ओरल कॉन्फ्रेंसेस चली, 4 कॉन्फ्रेंसेस चली, लेकिन 5th कॉन्फ्रेंस जब हुई तब आचार्यों ने निर्णय लिया सब कुछ अब रिटर्न फॉर्मेट में आ जाना चाहिए.
और रिटन फॉर्मेट में लिखने में भी उनको 13 साल जितना समय लगा, और तब जाके ये 32 आगम, एक परंपरा 32 कहती है 32 आगम और one says 45 आगम, बट डजंट मेक एनी डिफरेंस, आगमों की रचना हुई। आगम का मतलब मालूम है क्या होता है? आगम, आ प्लस ग प्लस म। आ मतलब आप्त पुरुष, आप्त पुरुष यानी पूर्ण पुरुष तीर्थंकर। ग, जो आगम यानी आप्त पुरुष ने कहा उसे सबसे पहले किसने जीला? ग यानी गंधर, गंधरों ने जीला। गंधरों ने जो कहा उसको किसने तुरंत ही समझा? म यानी मुनि भगवान या महत पुरुष, यानी साधु या श्रावक, साधु साध्वी ने या श्रावक श्राविका ने। So agam is just basically the compilation of these three words, आप्त पुरुष प्लस गंधर प्लस म यानी साधु मुनि भगवंत भी, और म यानी महत पुरुष यानी श्रावक श्राविका भी। तो ये ज्ञान किस परंपरा से आया? आप्त पुरुष ने गंधरों को कहा, एंड गंधरों ने एपोस्टल्स मतलब गंधर, उन्होंने आगे किसको ट्रांसफर किया? मुनियों को और श्रावक श्राविका। अभी तक कोई प्रश्न? आप इतने सारे वर्ड्स लिख रहे हो, आपको कोई इंग्लिश में ट्रांसलेशन चाहिए हो या कुछ ना समझ में आया? ऑल्दो मैं इतना जैन सेंटर्स में विजिट कर रही हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आपका हिंदी गुजराती सब समझ में आ जाता है। आई ट्राई टू यूज द इजीएस्ट वर्ड्स। ओके, ये लिपिबद्ध कौन सी भाषा में? ये लिपिबद्ध हुआ तब अर्धमागधी में, जिसे हम प्राकृत भाषा के नाम से भी जानते हैं, उसमें हुआ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब टीकाएं आनी शुरू हुई तो उसके अंदर ट्रांसलेशन हो गया, संस्कृत में ट्रांसलेशन हुआ। आज की डेट में तो हमें हिंदी में, गुजराती में, सब में मिलता है। लेकिन एक्चुअल जब ये लिपिबद्ध हुआ, देवादी गणेश श्रमण ने जिसे किया, तो ये अर्धमागधी भाषा में था। तो संस्कृत में कब हुआ? संस्कृत में अबाउट 1000 AD के बाद, 1000 AD के बाद जब हरिभद्र सुरेश्वर जी वगैरह आए, उसके बाद ये संस्कृत में आना शुरू हुआ। मतलब कि 1500 साल पहले। यस, 11, हाँ, पर अभी तो क्या चल रहा है? 2000 चल रहा है। 1000 AD के बाद यानी 1100 साल, 1100 साल पहले संस्कृत में आना शुरू हो गया था। यस, प्लीज हम प्रश्न पूछते चलिए। ब्रीफली आचरण सूत्र, कम अगेन, ब्रीफली आचरण सूत्र एक्सप्लेन करें। आचरण सूत्र कैसे ब्रीफली नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। उसमें आचरण है सारे साधुओं के लिए क्या आचरण, साधु साध्वियों के लिए क्या आचरण है, और श्रावक श्राविकाओं के लिए क्या क्या आचरण है, ये सब बताया गया है। इसलिए बहुत सालों पहले जब कहा ना, व्यवस्था ऐसी थी कि आचरण सूत्र से पढ़ने की शुरुआत होती थी, क्योंकि साधु साध्वियों का भी आचरण आ जाता था और श्रावक श्राविकाओं का भी आ जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ तो आचार्यों ने निर्णय किया आचरण नहीं, 10 वैकालिक से शुरू करो, और फिर अब जो टाइम आ गया है, अब हम लोग उत्तराधीन सूत्र से करने की हमें आज्ञा है। एक बार आपको उत्तराध्याय का मीनिंग, उत्तराध्ययन शब्द जो है उसको अगर आप ब्रेक करोगे तो उत्तर प्लस अध्ययन। उत्तर का मतलब होता है बाद का, बाद, आफ्टर, लेटर, या उत्तर मतलब हायर। तो जो लेटर अवस्था, जो बाद की, यानी जो शुद्ध अवस्था है, अभी हम लोग कौन सी अवस्था में जी रहे हैं? अशुद्ध अवस्था में। तो इसके बाद एक्चुअल अवस्था कौन सी है? शुद्ध अवस्था तक जाने के लिए अध्ययन, मतलब जिसे हमें बार बार लर्न करना चाहिए। एक बार नहीं, एक बार उत्तराधीन सूत्र सुन लिया खत्म हो गया, नहीं, एक का एक उत्तराधीन सूत्र आप जितनी बार पढ़ोगे, हर बार आपको कुछ ना कुछ नए रहस्य, नया अर्थ उसमें से समझने को मिलेगा। उत्तर अवस्था की प्राप्ति के लिए या उत्तम अवस्था की प्राप्ति के लिए जिसका बार बार अध्ययन किया जाना चाहिए, इसलिए उस समय के आचार्यों ने इसका नाम उत्तराध्ययन सूत्र दिया। और कोई प्रश्न प्लीज? आप इतने पीछे क्यों बैठे, आप आगे आ जाइए तो मैं भी सुन सकती हूँ आपको। ये जो बोल रहे थे वो मार्कोस राग में बोल रहे थे। भगवान जब भी कुछ बोलते हैं, ऐसे कोई भी भगवान, श्री कृष्ण भगवान बोले या बुद्ध भगवान बोले या भगवान महावीर बोले, जब भी वो बोलते हैं तो उनका बोलना हमेशा छंदबद्ध होता है, यानी वो कोई ना कोई राग में होता है। और भगवान महावीर की अंतिम देशना मालकोस राग के अंदर ही। मतलब ये गद्य में नहीं, पद्य में कहा जाता है। जी,
ऐसा है कि कुछ अध्ययन हमें जो अब मिलते हैं वो गद्य की फॉर्म में भी मिलते हैं, जैसे 29 थी वो गद्य फॉर्म में, लेकिन फिर भी जब ये ओरिजिनली भगवान के मुख से कुछ भी निकलता है ना तो वो अपने आप एक गाने के सुर में ही निकलता है, मानहंस राग के अंदर। अभी जो 36 अध्ययन है उसमें से काफी पद्य फॉर्म में है और काफी गद्य फॉर्म में। ये कब चेंजेस आए आई डोंट नो, लेकिन ये चेंजेस करने पड़े। और कोई प्रश्न? हमने पूरा हिस्टोरिकल फैक्ट्स जितना जरूरी है समझा, बाकी तो इसमें बहुत कुछ और भी है जो हम कह सकते हैं, लेकिन शायद इतना ही समझना काफी है। उत्तराध्ययन सूत्र हमारे पास ओवर द इयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ सो मेनी इयर्स हमारे पास किस तरह पहुंचा। 5 कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उसमें जो पहली 4 कॉन्फ्रेंसेस थी उसमें खाली ओरल कंपाइलेशंस चलते रहे, लेकिन उसके बाद जो 5th हुई उसके अंदर देवादिगणी ने, आचार्य ने ये निर्णय लिया अब सब कुछ रिटन फॉर्मेट में आए। क्योंकि उसके पीछे भी एक कहानी है बहुत सुंदर कि आचार्य कुछ गोचरी के लिए गए थे उस समय, और उस दिन उनको बहुत जुकाम हो गया था। तो जिस घर में गोचरी के लिए गए उन्होंने कैम्फर दिया। कैम्फर, यू अंडरस्टैंड? हाँ, कपूर, कि आपको इतना जुकाम है तो खाली कान के पीछे ये कैम्फर रखिए आप, तो इससे आपका जुकाम अच्छा हो जाएगा। लेके कैम्फर लगा के चले गए। व्यवस्था ऐसी थी उस समय की कि अगर आप श्रावक के घर से कुछ लाए हो तो सूर्यास्त से पहले पहले आपको उसे रिटर्न करना चाहिए। लेकिन आचार्य अपने दैनिक व्यवस्था में कुछ ऐसे उलझ गए कि कान के पीछे जो कैम्फर लगाया था वो वापस करना भूल गए। सूर्यास्त के बाद उन्हें याद आया और तब उन्हें लगा कि अरे सुबह जो वस्तु में लाया हूँ उसे शाम को लौटाना भूल रहा हूँ, ऐसी मेरी मति हो गई है, तो शास्त्रों का क्या भरोसा। और इसीलिए इस छोटी सी घटना से वो इतने आंदोलित हुए कि वो टच्ड बाय सो मच बाय दिस सिंगल सिचुएशन दैट ही थॉट कि अब हमें इसको रिटर्न फॉर्मेट में लाना चाहिए। आचार्य की बुद्धि इतनी क्षीण होती जा रही है कि थोड़ा रोग, थोड़ा उद्वेग आया, उसमें ही जस्ट फॉरगेट टू रिटर्न दैट कैम्फर स्टिक। कुछ कैम्फर की स्टिक थी उसको वापस करना भूल गए, तो और सामान्य लोगों की तो मति क्या होगी। आचार्यों की मति इतनी मंद होती जा रही है और इस कारण से उन्होंने निर्णय लिया कि नाउ लेट अस राइट इट। और कोई प्रश्न? ये जो स्प्लिट हुआ अकाल के बाद वो वापस मिले, वो वापस स्प्लिट हो गए, तो वापस जो पहले हुए थे ना, दैट वाज नॉट स्प्लिट। भद्रबाहु स्वामी और स्थूली भद्र दोनों समन्वय पूर्वक अलग हुए थे कि यहाँ पर समाज हमारे को संभाल नहीं पा रहा, तो आधे हम वहां चले जाते हैं, आधे यहाँ चले जाते हैं। ऐसा तो हम लोग अभी भी देखते हैं, दिल्ली में जो साधु संत आते हैं और बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, समझो 40 जनों का ग्रुप है, तो वहां का समाज 40 जनों की गोचरी आदि की व्यवस्था नहीं कर पाता, तो क्या करते हैं, 20 एक तरफ चले जाते हैं, 20 एक तरफ। ऐसा निर्णय लिया गया था। तब कोई ये भेद नहीं बना था कि श्वेतांबर और दिगंबर का भेद हो जाए, नहीं, सभी दिगंबर साधु हुआ करते थे। जो भगवान की परंपरा थी उसके अंदर ही सभी दिगंबर साधु ही थे, लेकिन आफ्टर 12 इयर्स जब वो वापस आए तो वैसे दिगंबर ही रहे, लेकिन सूत्रों में और आचरण में थोड़े थोड़े फर्क आते रहे। और उसके भी 250 साल के बाद एक्चुअली दूसरे पंथ वगैरह ऐड ऑन होते रहे। मगर वो वापस दक्षिण में चले गए? नहीं, वो दक्षिण नहीं गए वापस। भद्रबाहु स्वामी ने वहां से विहार कर लिया, लेकिन डिफरेंट वे तरफ गए। मेन बात ये समझने की है कि पहला जो स्प्लिट हुआ दैट वाज बिटवीन भद्रबाहु स्वामी एंड स्थूली भद्र। देयर वर नो कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई ऐसे बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे लोगों के बीच में, लेकिन बस ये था 12.5 साल बाद अब उनके साधु ही आपस में एक ये आचरण कर रहा है और दूसरा ये आचरण कर रहा है। उन दोनों को एक दूसरे के प्रति कोई घृणा का भाव भी नहीं था कि तुम क्यों ऐसे कर रहे हो और तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसा नहीं था। लेकिन एक ही संघ में, एक ही घर में, एक ही समाज में रहकर दो साधुओं के आचरण अलग अलग होंगे तो समाज कंफ्यूज होगा और उसे जैन धर्म को हानि पहुंचेगी। ये सोचकर उन लोगों ने काफी गहन निर्णय था ये, लेकिन ये निर्णय अंतिम श्रुत के भी नहीं लिया। उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं था। आज तो झगड़े हो गए हैं शुरू, उस समय कोई झगड़ा नहीं था। और कोई प्रश्न?
इस उत्तराधीन सूत्र के अंदर 36 अध्ययन, 36 चैप्टर्स, और उसमें भी 34 चैप्टर्स के अंदर ऐसा माना जाता है कि देयर आर साइटेशंस, देयर आर नो एडिशंस बट लॉट ऑफ डिलीशंस बहुत सारी हुई है, लेकिन 2 चैप्टर सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रहे हैं, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 29। चैप्टर 2 जो है वो परिषद संबंधी है, साधु संतों के लिए है, लेकिन चैप्टर 29 साधु समाज और श्रावक समाज दोनों के लिए इक्वली अप्लाई होता है। नाउ लेट अस कम टू चैप्टर 29 जो हम लोगों का विषय है। आपका कोई प्रश्न नहीं है ना? तो हम चैप्टर 29 की बात करते हैं। चैप्टर 29 में टोटल 73 सूत्र है। कितने? 73 टोटल 73। और सूत्र भी कैसे? ओनली वन वर्ड, केवल एक शब्द है कि ये सूत्र है, और उस शब्द को फिर सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को क्या बताते हैं। इस पूरे चैप्टर को हमने प्रोसेस एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में डिवाइड किया है। प्रोसेस यानी प्रक्रिया क्या है और प्रोडक्ट यानी परिणाम क्या है। कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो करने की एक प्रक्रिया होती है और परिणाम उसका कुछ और मिलता है। जैसे हम आटा डो इकट्ठा करेंगे, उसमें थोड़ा तेल या घी डालेंगे, पानी डालेंगे, प्रक्रिया क्या है? आटा लिया, उस सूखा आटा ड्राई फ्लावर लिया हमने, उसके अंदर घी डाला, पानी डाला, ये प्रक्रिया है, और उसके परिणाम में हमारे पास क्या हाथ में आया? एक टाइट डो, इज़न्ट इट? अब वो डो जो है दैट इज अ रिजल्ट। मैं बोलती रहूं कि मुझे डो चाहिए, बट आई हैव टू अंडरगो द प्रोसेस, इज़न्ट इट? इसी तरह हम यहाँ धर्म क्षेत्र में बोलते रहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, लेकिन मोक्ष इज जस्ट अ रिजल्ट। व्हाट इज द प्रोसेस? पूरा 73 सूत्र का ये जो चैप्टर है, चैप्टर 29, इसके अंदर प्रोसेस और प्रोडक्ट की बात की है। हम लोग ऐसा करते हैं, अब मुझे क्रोध नहीं करना किसी को, क्योंकि क्रोध हमारे को कर्म बंधाता है। अब मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, बिकॉज जेलसी क्रिएट्स लॉट ऑफ कार्मिक क्रेडिट्स इन माय अकाउंट। अब मुझे ये नहीं करना। लेकिन भगवान ने बताया जिस तरह से, ये तो परिणाम है कि तुम्हारी बुद्धि ही ऐसी हो जाएगी, तुम्हारा मन ही ऐसा हो जाएगा कि सामने वाले पर क्रोध नहीं आएगा। व्हाट इज द प्रोसेस? जो हमने भी लॉस एंजलिस में हम लोग कर आए, लॉस एंजलिस के अंदर 3 सेशन थे, 2 या 3 जो भी थे वहां पर, उसके अंदर हम लोगों ने यही किया। क्रोध विजय, कषाय विजय के ऊपर पूरा था, कैसे क्रोध विजय किया जाए। हमें लगता है क्रोध नहीं चाहिए हमें क्रोध, लेकिन देयर इज अ प्रोसेस। आप उस प्रोसेस के अंदर आएंगे तो उस प्रोसेस का जो प्रोडक्ट होगा, जो रिजल्ट होगा, वो ऐसा होगा तुम्हारी वृत्ति ही क्रोध रहित हो गई। इसी तरह धर्म क्षेत्र पर हम गाते रहते हैं कि अब मुझे 3 भाव में मोक्ष चाहिए, अब मुझे अपुनर्बंधक दशा चाहिए, अब मुझे कषाय नहीं चाहिए। लेकिन मेक श्योर करो 29 चैप्टर के अंदर भगवान ने यही बताया, ये सब रिजल्ट है। तुम्हें क्रोध नहीं चाहिए, ये रिजल्ट है। Ask for the process, don't ask for the result। और हम लोग क्या कर रहे हैं? दुर्भाग्य है हमारा कि हम लोग जो भी रिजल्ट्स है वो मांग रहे हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उसके लिए भागम भाग भी कर रहे हैं, लेकिन we don't actually know the real process। जैसे आटे के लिए कहा, एक डो क्रिएट करने के लिए प्रोसेस कितना छोटा सा है। ड्राई फ्लावर लो, तेल या घी डालो और पानी डालो, डो क्रिएट हो गया, ओवर, बात खत्म। लेकिन अब मुझे राइट प्रोसेस ना पता हो और मैं कपड़े धोने बैठ जाऊं और मैं बर्तन धोने बैठ जाऊं और मैं झाड़ू मारने बैठ जाऊं, तो क्या कहेंगे हम? कितना मुश्किल काम है डो बनाना। अरे बट दैट वाज नॉट द राइट प्रोसेस। डो बनाने का प्रोसेस ही कुछ और था और उसकी जगह तुम ये करने लगे। मानो ना किसी को कमरे में लाइट चलानी हो, मान लो किसी को अंधेरे कमरे के अंदर लाइट स्विच ऑन करनी है, उसे प्रकाश चाहिए, तो प्रोसेस क्या है? क्या है प्रोसेस? बस स्विच ऑन करो और लाइट का कनेक्शन ठीक है कि नहीं ये चेक कर लो, स्विच ऑन करो। लेकिन उसको स्विच चलाने का प्रोसेस ना आता हो, वो कारपेट्स उठाकर बाहर रखने लगे, उसे लगे हो सकता है ये प्रोसेस हो, कारपेट्स बाहर रखने से लाइट हो जाएगी, या फिर इन पंखों को घुमाने लगे या लाइट को छेड़ने लगे, उससे क्या लाइट होगी? The process was so simple, just to switch on the light, switch on this switch, बस, और लाइट हो गई।
इसी तरह हम लोग धर्म मार्ग पर आकर कभी तीर्थ यात्रा करते हैं, कभी पूजा करते हैं, कभी भक्ति करते हैं, कभी हम लोग सत्संगों में भागते हैं, कभी शिविरों में भागते हैं, कभी दान करते हैं, कभी तप करते हैं, कभी मंत्र जाप करते हैं। हमें लगता है कोई तो प्रोसेस होगा जिससे हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जैसे कहा ना, कभी कोई कारपेट हटा रहा है, कोई ये वीडियो कैमरा साफ कर रहा है कि शायद ये वीडियो कैमरा साफ करके प्रोजेक्टर है ना, इसे साफ करके लाइट हो जाए। He doesn't know the process। आप समझ पा रहे हो कहाँ कंफ्यूजन थी? हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए शांति, प्रोडक्ट चाहिए हमें आत्मज्ञान सम्यक दर्शन, प्रोडक्ट चाहिए हमें आनंद खुशी, प्रोडक्ट चाहिए हमें सिर्फ परमात्मा का स्थान, प्रोडक्ट चाहिए अरिहंत जैसी शुद्धि, लेकिन हमारा प्रोसेस ही एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इसलिए सम्यक्त्व पराक्रम का जो पूरा चैप्टर है उसके अंदर जो 73 सूत्र है वो इसी तरह हम लोगों ने डिवाइड किए हैं कि ये अगर सूत्र है तो प्रोसेस क्या है और उसका परिणाम क्या है। आप लोगों से भी इन 2 दिनों में मुझे 4 सूत्रों के बारे में बात करनी है, और वो 4 सूत्रों को हमने जो टाइटल दिया है वो है धर्म के 4 आधार। धर्म के 4 आधार, जैसे कोई भी आज हॉल भी है तो उसके लिए 4 पिलर्स चाहिए तुम्हें, isn't it? कोई गाड़ी है तो 4 पहिए चाहिए, कुछ ना कुछ आधार होता है, सपोर्ट। आधार मतलब there has to be some support on which the entire foundation stands, isn't it? So the foundation of religion, the foundation of spirituality stands over these 4 sutras। इन सूत्रों को भगवान ने 29 नंबर के चैप्टर में दिया है। फर्स्ट सूत्र इज संवेग, सेकंड इज निर्वेद, तीसरा है धर्म श्रद्धा, और चौथा है शुश्रूषा। ये 4, वहां पे भी आप अगर उत्तराधन सूत्र खोलकर देखेंगे तो 1, 2, 3 और 4 नंबर के 4 सूत्र हैं। क्या है संवेग का स्वरूप और क्या है उसका परिणाम? स्वरूप क्या है और परिणाम ये समझ लो, क्योंकि मैंने कितने लोगों को ऐसा बोलता हुआ सुना है, आई हर्ड सो मेनी पीपल, हमें बहुत संवेग चाहिए या हमें बहुत धर्म श्रद्धा चाहिए, ऐसा भी बोलते हैं। बार बार हमें शंका हो जाती है, हमें खूब श्रद्धा चाहिए। एक प्रोसेस समझो, एंड द रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेस इज धर्म श्रद्धा, रिजल्ट ऑफ दैट प्रोसेस इज संवेग। संवेग से आप क्या समझते हैं, पहले आप मुझे बताइए। पहला ही सूत्र है संवेग। संवेग से आप क्या समझते हैं? बहुत कॉमन वर्ड है, मोक्ष अभिलाष। मोक्ष अभिलाष, हाँ, जैसे हम लोग कह सकते हैं संवेग यानी मोक्ष की अभिलाष, यानी आप पूरा दिन यही सोचते रहे मोक्ष हो मोक्ष हो मोक्ष। क्या करें, क्या, व्हाट इज द प्रोसेस, प्रक्रिया क्या है संवेग की? बोलिए। पुरुषार्थ क्या करना है? हम लोग बहुत ब्रॉडली बोल देते हैं कि संवेग यानी पुरुषार्थ, मोक्ष की अभिलाषा, लेकिन क्या करें, क्या हमें क्या करना है? चिंतन, श्रद्धा, ओके, और बताइए, बोलिए। संवेग चाहिए। देखो, संवेग वर्ड को अगर ब्रेकअप करोगे ना, सम प्लस वेग, वेग, वेग मतलब गति, स्पीड, स्पीड, और सम मतलब राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन। सम मतलब राइट डायरेक्शन में स्पीड, एक गति, एक वेग, ये चाहिए। अभी तक हमारा सारा वेग, सारी गति हमारी कहाँ है? रॉन्ग डायरेक्शन में। और बस इतना ही समझ लो, एक है मनुष्य की बुद्धि, देयर इज वन सेट ऑफ माइंड हु थिंक्स कि हैप्पीनेस, सुख इज आउटसाइड, फ्रॉम आउटसाइड ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, पीपल या परिस्थितियों यानी सिचुएशन से। ये है रॉन्ग दिशा में भाग रहे हम। और एक है संवेग, जहां मनुष्य का निर्णय हो जाता है, या तो सत्संगों से या जीवन को देखकर ही निर्णय हो जाता है कि सुख बाहर नहीं मिलता, सुख कहाँ मिलेगा? भीतर। जब ये निर्णय होने लगे तो ये कहलाएगा राइट डायरेक्शन में निर्णय हुआ तुम्हारा। इसे कहा जाएगा संवेग। संवेग का मीनिंग क्या है? सम यानी राइट डायरेक्शन, वेग यानी गति। अभी तक हम लोगों को लग रहा था कि सुख जो है ना, बाहर की वस्तु में, व्यक्ति में, परिस्थितियों में मिलेगा। मतलब एक वस्तु ली, इसमें से सुख मिला,
थोड़े दिनों में क्या होता है, कम हो जाता है कि नहीं? दिनों क्या घंटों में ही सुख हमारा कम हो जाता है, तो हमें लगता है दूसरे में से सुख मिलेगा, फिर हमें लगता है तीसरे में से, ऐसे हमें लगता है ये व्यक्ति में सुख मिलेगा, नहीं इसमें नहीं, इसमें मिलेगा, या सिचुएशंस, इस वेकेशन में जाओ तो सुख मिलेगा, यहाँ जाओ तो सुख मिलेगा। ऐसे अभी बाहर की दुनिया से सुख लेने की जो हमारी इक्वेशन बनी है ना, वो रॉन्ग डायरेक्शन की इक्वेशन है। लेकिन बार बार सत्संग सुनते सुनते, या कोई जीव अगर पूर्व का आराधक भी है तो उसे चिंतन आदि करते करते भी राइट डायरेक्शन ख्याल आती है, सुख बाहर नहीं होता, सुख कहाँ मिल सकता है? इट्स अ सब्जेक्टिव फिनोमिना, इट्स नॉट एन ऑब्जेक्टिव फिनोमिना। सुख जो है हम लोगों को क्या लगता है, इट्स एन ऑब्जेक्टिव फिनोमिना, यानी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के अंदर, बाहर की ऑब्जेक्ट की दुनिया में कुछ मेरे अकॉर्डिंगली, मेरे डिजायर्स के अकॉर्डिंगली फुलफिल हो तो आई बी हैप्पी, इजंट इट? हमारे लिए अभी सुख की क्या डेफिनेशन है? ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के अंदर, बाहर के मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर मेरी चाहत के अनुसार जब कुछ घटना घटती है उसे हम सुख मानते हैं कि नहीं? लेकिन जब ये इक्वेशन तुम्हारी ऑब्जेक्टिव वर्ड से हटकर सब्जेक्टिव वर्ड, बिकॉज सुख इज अ स्टेट ऑफ माइंड। सुख क्या है, आनंद क्या है? इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। कई बार आप खुद ही कोई वेकेशन प्लान करेंगे, खुद ही इतने उत्साह से उसके लिए पे करेंगे, एंड लैक्स ऑफ रुपीज यू आर पेइंग एंड यू गो देयर, लेकिन आपको वहां से पीछे से कोई न्यूज आ जाती है कि समथिंग यू आर फायर्ड फ्रॉम योर जॉब। लो, अब वही वेकेशन आपको एंजॉयमेंट देगा क्या? व्हाई? बिकॉज जो हैप्पीनेस है इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आपका स्टेट ऑफ माइंड पूरा गड़बड़ा गया क्योंकि अब जॉब की टेंशन, जॉब के फाइंड आउट करने का नया सारा जो प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, इट ऑल एवरीथिंग इज क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट इन योर माइंड। देयरफॉर सुख इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव फिनोमिना, इट्स टोटली अ सब्जेक्टिव फिनोमिना। पहले तो आप ये बात से सहमत है कि नहीं? अभी तक हमें क्या लगता है कि आप लोग इस सभा में, तो मैं देख रही हूँ ज्यादातर सारे 50 एंड 60 प्लस लोग हैं, तो 60 साल तक भी अब तो ये निर्णय हो गया होना चाहिए कि सुख बाहर नहीं मिल सकता। श्रीमद जी ने तो 16वें साल पे लिख दिया था, लक्ष्मी अन्य अधिकार वदता शुभद्यु ते तो कहो। लक्ष्मी बड़ी, अधिकार भी बढ़ा, लेकिन उससे क्या बढ़ा? तुम्हारे सुख में क्या बढ़ा ये तो बताओ। हम लोग 60 ईयर तक भी जिस बात का निर्णय नहीं कर पाते, उस 16वें साल पर इस विरल पुरुष ने निर्णय करके अपने काव्य के अंदर दे दिया, और हम लोग 60 तक निर्णय कर पाए। अभी लगता है कि नहीं मिल जाएगा सुख आगे, या हम लोग को पोस्टपोन करने की आदत है ना, तो हमें लगता है चल इस गांव में नहीं नेक्स्ट गांव में मिल जाएगा, कहीं हम पोस्टपोन करते रहे। डू यू एग्री और नॉट? नहीं, लेकिन जब तक ये नहीं समझ में आता सम वे, यानी राइट डायरेक्शन में अब तुम्हारी स्पीड चालू हो, तब तक धर्म का पहला आधार ही नहीं शुरू हुआ। अभी तक यदि एक कामना है कि बाहर, अभी तक ये डिजायर है कि बाहर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं सुखी होऊंगा, तो ये संवेग नहीं है। हाँ, बाहर के चेंज के साथ भीतर यहाँ कुछ चेंज हो, मेरे सोचने के ढंग में, मेरे देखने के ढंग में, मेरे स्वीकार करने के ढंग में कुछ बदलाव आए तो संवेग। परिस्थितियां हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन परिस्थिति के समय मनस्थिति हम कंट्रोल कर सकते हैं, isn't it? एक ही वेदर है, वेदर क्लाइमेट, वो एक व्यक्ति को बड़ी सुख प्रधान लग रही है, दूसरे को बड़ा दुखी कर रही है। ऐसा होता है कि नहीं? सन आपके यहाँ आता है तो यू फील वाओ क्या गुड वेदर है। मैं अभी लंदन में थी तो शी वाज सेइंग मी कि इतनी बढ़िया वेदर है प्रभु। क्या वेदर है मैंने पूछा, तो कहता है तो सनी डे है। हमने कहा लो, हम तो सनी डे को बेकार मानते हैं। सो इट इज जस्ट एक ही वेदर है, एक को अच्छी लग रही है और दूसरे को खराब लग रही है। इट इज ऑल अप टू योर स्टेट ऑफ माइंड, isn't it? सम वेग का मतलब होता है राइट डायरेक्शन में अब तुम्हारी वेग, स्पीड, गति, तुम राइट डायरेक्शन में चल पड़ो, इसका मतलब होता है समवेग। हमने बहुत शब्द सुने, जैसे किसी ने बोला मोक्ष अभिलाषा, किसी ने बोला कुछ, ठीक है, लेकिन सबसे सिंप्लीफाइड डेफिनेशन क्या है? सम प्लस वेग, राइट दिशा में
गति पकड़ लेना। कितनी स्पीड है आप पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा स्पीड होगी उतनी जल्दी पहुंचोगे। अगर गति स्लो भी है तो भी इतना तो भरोसा रखो कि दिशा राइट पकड़ती है। अब ये संवेग प्रकट कैसे होता है? देखो बहुत बड़ी बात है कि हम राइट डायरेक्शन में चल पड़े। ये प्रकट कैसे होता है? तो उसके लिए उत्तरार्जुन सूत्र के माध्यम से हम कुछ बातें करते हैं। नंबर 1, जब भी आप किसी ज्ञानी को सुनते हैं, सत्पुरुष को सुनते हैं, तो श्रवण के समय में पूरा उल्लास है, तो ये तुम्हारे संवेग की वृद्धि करेगा। लेकिन यदि आप डल चेहरे से सुनते हैं, न अंदर कोई आनंद है, न कोई उत्साह है, न उमंग है, ऐसा लग रहा है हाँ ये तो तब बोला था सुधर्मा स्वामी ने जम्बू स्वामी को, सर हमें क्या, आप अपने से रिलेट ही नहीं कर पा रहे बात को, देयरफॉर आपको उत्साह नहीं आ रहा। लेकिन जब आप किसी ज्ञानी के वचन को अपने से रिलेट करके सुनना शुरू करते हैं तो एक उत्साह आएगा कि नहीं? जब भी आप ज्ञानी के वचन को सुने और अपने से रिलेट करने लगे और उत्साह आए, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ संवेग। इसलिए धर्म की पुस्तकें पढ़ना वही पढ़ना जिसे पढ़कर ना उत्साह आता हो। सीधा बहुत हाईएस्ट सूत्र मत उठा लेना, उत्तरार्जुन सूत्र उठा लिया या आचार्य सूत्र उठा लिया और पढ़ने में इतना बोरिंग लग रहा है, आपका संवेग कभी डेवलप ही नहीं होगा। और संवेग क्या है? इट इज अ फाउंडेशन ऑफ रिलीजन। जो 4 कॉर्नरस्टोन्स होते हैं किसी भी जगह के, किसी भी फाउंडेशन के, वो है संवेग। इसलिए धर्म क्षेत्र में श्रीमद ने तो खास कहा है, कुछ पढ़ना भी हो ना तो गुरु की आज्ञा से पढ़ो, क्योंकि आप अपनी चॉइस से उठा लोगे और वो आपको बड़ा टफ लग रहा है, बोरिंग लग रहा है, उत्साह ही नहीं आ रहा, आप उसके लिए खींचे नहीं जा रहे। यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? हम लोग में ये बहुत होता है, हम कोई अच्छी किताब नहीं लेकर आते हैं ना, अभी उसको इतना पढ़ा भी नहीं, बट अंदर में इतना खिंचाव होता है, कब सुबह हो, कब हम खाली हो, कब हम उसको पढ़ने बैठे। तो अगर आपको भी अपने सद्गुरु के प्रति, सत्पुरुष के प्रति, सत्संग के प्रति, अपने वाचन के प्रति वो खिंचाव, वो अट्रैक्शन नहीं है, तो समझो संवेग का फाउंडेशन नहीं क्रिएट हो रहा। डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? नंबर 2, संवेग का प्रोसेस क्या है वो बता रही हूं। संवेग का प्रोसेस, संवेग का मीनिंग पता चल गया? सही दिशा में अब कदम उठ जाना, इसे संवेग कहा है। और ये होता कैसे है? सही दिशा में हमारा कदम उठता कैसे है? तो उसके लिए क्या बताया? नंबर 1, उत्साह पूर्वक सुनो और वही पढ़ो जिसके अंदर उत्साह आता हो। और आपको ना समझ में आए तो अपने गुरु भगवान से जाकर पूछो कि मैं क्या पढ़ूं, मारा मटे शू योग्य छे। यू हैव टू गो एंड आस्क, और सुनो भी उन्हीं को। आप लोग, कई बार लोगों को मन करता है बहुत ऊंचे ऊंचे आचार्यों को सुनना, लेकिन यहाँ पे कुछ पल्ले पड़ता है, निश्चय की बड़ी बड़ी बातें सुनेंगे लेकिन अंदर में कुछ घुसता ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय आदि की बातें करेंगे लेकिन क्रमबद्ध के नाम से ही कंफ्यूज रहेंगे हमेशा, तो क्या फायदा? व्हाट इज द यूज? जिसको श्रवण करने से, समझने से, सुनने से, पढ़ने से आपका उत्साह बढ़े उस तरफ में, उसी को वही संवेग यानी जो पहला फाउंडेशन है वो तैयार करेगा। संवेग का दूसरा ढंग क्या है? गुरु है आप लोगों के जीवन में, सदगुरु है आपके जीवन में, कि सब ऐसे ही सब कुछ लोकल चलता है? है किसी के जीवन में? कोई हाथ खड़ा करे। ओ गुड, सदगुरु है, सदगुरु है तुम लोगों के जीवन में, वेरी गुड। सदगुरु के प्रति, जब जिनके जीवन में नहीं है उनको तो मैं ये सूत्र नहीं कह सकती, ये प्रोसेस, लेकिन जिनके जीवन में है सदगुरु, उनके लिए खास कहा जाता है कि पौद्गलिक वस्तुएं यानी मटेरियलिस्टिक थिंग्स से ज्यादा सदगुरु पर राग अलाउड है अभी की भूमिका में। सीधा ये मत को वीतराग होने का मार्ग है, हम किसी पर राग नहीं करेंगे। जिनके पास गुरु नहीं है शायद उनकी ये फिलॉसफी होगी कि वीतराग होने का मार्ग है, हम तो किसी पर राग करें, लेकिन नहीं, वो वीतराग होने का लक्ष्य भी जो पूरा कराएगा वो आपकी भूमिका में राग के थ्रू ही मान जाएगा। इसलिए कहाँ ट्रांजिशन कहाँ लाना है, चेंज कहाँ लाना है, वेयर यू हैव टू ब्रिंग दिस ट्रांजिशन। मेटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स और मेटीरियलिस्टिक वर्ड और रिलेशंस के प्रति जो राग है ना, उससे ज्यादा राग तुम्हारे सदगुरु के प्रति होगा, तो ये तुम्हारा संवेग का फाउंडेशन
क्रिएट करेगा। इसलिए जिनके पास गुरु है ये उनके लिए है, जिनके पास अभी गुरु है ही नहीं, जिन्हें लगता है कि हाँ ठीक है सभी को सुन लेते हैं, उसमें से हम अच्छा निकाल के अप्लाई कर लेते हैं। श्रीमद ने इसे स्वच्छंद कहा है, परम कृपाणुदेव ने इसे स्वच्छंद कहा है। जो लोग क्या करते हैं, सबका सुनते हैं और फिर क्या कहेंगे, हमें उसमें से जो अच्छा लगता है ना हम निकाल लेते हैं। अरे पहली बात तो कोई ज्ञानी कुछ गलत बोलते ही नहीं, खराब बोलते ही नहीं, तुम क्या अच्छा निकाल लोगे? जो भी ज्ञानी बोलते हैं सब अच्छा ही होता है, लेकिन स्वच्छंदी बुद्धि होती है ना, उसको क्या लगता है, हम सबका सुनने जाते हैं, जिसमें से जो अच्छा लगता है ना हम वो निकाल लेते हैं। इस तरह से कभी भी मार्ग शुरू ही नहीं होगा, खत्म की तो मैं बात ही नहीं करती। समझ में आता है? यू नीड वन गाइड, सदगुरु, मेंटर, प्रिसेप्टर, कोई चाहिए तुम्हें अपने जीवन में जिसको पूछ कर, अरे आपको ड्राइविंग भी सीखना हो तो क्या वो गूगल कर करके ड्राइविंग सीख सकते हो? क्या गूगल कर करके ड्राइविंग सीख सकते हो? स्विमिंग सीखना हो तो स्विमिंग के ऊपर कोई किताबें लिखी हो, यूजर मैनुअल, ऐसा स्विमिंग सीख सकते हो क्या? यू नीड अ कोच टू टीच यू स्विमिंग, टू टीच यू ड्राइविंग, जो एकदम नोन इन आंखों से देख सकते हो ना, उन सबको भी सीखने के लिए तुम्हें गुरु चाहिए। तो जो आंखों से देखा नहीं जाता उसके लिए बिना गुरु के तुम कैसे यात्रा कर सकते हो? मुझे तो बहुत दुख होता है जब लोग बोलते हैं कि हाँ हम सबका सुन लेते हैं, जो अच्छा लगता है ना वो हम लोग करने लगते हैं। ठीक है तुम लोग कर रहे हो, लेकिन तुम कहीं पहुंचोगे नहीं, मेक श्योर। इसलिए नंबर 1 संवेग क्रिएट करने के लिए पहला क्या ढंग होता है? उत्साह पूर्वक सुनना। जब तक ज्ञानी नहीं मिले तब तक भी सबको उत्साह पूर्वक सुनो, लेकिन जिस दिन तुम्हें लगता है कि नहीं यहाँ मुझे गठबंधन करना चाहिए, वहां सरेंडर करो। और फिर आप जब ये सरेंडर हो जाए, सरेंडर मतलब समर्पण, ये समर्पण हो जाए तो उसके प्रति मेटीरियलिस्टिक वर्ड से ज्यादा राग, क्योंकि अभी की भूमिका में आप सीधा राग नहीं छोड़ सकते, लेकिन राग की टोटल इन्वेस्टमेंट को कहीं और लगा सकते हो, ये पॉसिबल है कि नहीं? अभी की भूमिका में ऐसा नहीं है कि आप सीधा राग छोड़ ही दोगे, बिल्कुल अब राग नहीं है आपको किसी के प्रति। अभी क्या हो सकता है, आप गलत चीजों से, गलत परिस्थितियों से राग हटाकर एक राइट के पास सौंप सकते हो कि प्रभु आपको जैसा मुझे चलाना है वैसे चलाओ। राग मीन्स अटैचमेंट, राग मीन्स अटैचमेंट, योर एंटायर अटैचमेंट के। अभी तक हमें क्या था, बुद्धि उल्टी थी ना, इसलिए हमको क्या था कि बाहर की चीजें हमें सुखी कर देगी। हमारी अटैचमेंट वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स के प्रति थी, पीपल के प्रति थी, सिचुएशंस के प्रति थी। लेकिन जैसे ही अब हमें सदगुरु मिलते हैं तो आवर अटैचमेंट इज मोर ऑन देम। जैसा मैं अपने यहाँ भी देखती हूँ ग्रुप में सब जगह कि क्या होता है कि उन्होंने प्लान किया होगा कि हमें संडे वहां जाना है, लेकिन अगर संडे का सत्संग डिक्लेयर हो गया तो दे विल लीव अहेड, लीव असाइड ऑल देयर प्लान्स, ऑल देयर जो भी उन्होंने क्रिएट किए होंगे वो सारा प्लान साइड कर देंगे एंड दे विल अटेंड द सत्संग ओनली। इसे कहा जाता है राग, अटैचमेंट। जब हमारा अटैचमेंट हायर के प्रति जो ज्यादा प्योर है, क्योंकि सम वे यानी राइट डायरेक्शन में अब तुम्हारे कदम चल पड़े तो राइट डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ प्योरिटी, इजंट इट? राइट डायरेक्शन है क्या? शुद्धता की डायरेक्शन, प्योरिटी की डायरेक्शन, सिद्ध होने की डायरेक्शन, यही तो है राइट डायरेक्शन। तो राइट डायरेक्शन में चलोगे तो सबसे पहला एनकाउंटर जो होगा वो राइट व्यक्ति के प्रति राग का होना चाहिए। राग हटा तो मैं कभी नहीं कहती अभी की भूमिका में, आगे जाके अपना हट जाएगा, इसलिए भी कहने की जरूरत नहीं है। संवेग कब प्रकट होगा? नंबर 1 उत्साह पूर्वक। समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को? अब मैं बिल्कुल हिंदी में शिफ्ट हो गई हूँ, बताना समझाई चाहिए, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जहाँ आप लोग कहोगे लास्ट में भी पूछ लूंगी। संवेग यानी धर्म के जो का आधार है उसमें 4 आधार है। There are 4 foundation for religion, for spirituality. First we are talking right now is संवेग। संवेग का मतलब ये होता है सही दिशा में चल पड़ना। संवेग, वेग मतलब गति और सम मतलब राइट। राइट डायरेक्शन में अब तुम्हारी गति हो जाए। अभी तक तो तुम संसार की डायरेक्शन में चल रहे थे तो बार बार परिभ्रमण
लाइफ एंड डेथ एंड लाइफ एंड बर्थ डेथ लाइफ, ये सारा तुम्हारा सर्कल चल रहा था. बट नाउ with the coming of some सत्पुरुष into your life, तुम्हें लगता है ये भी कोई जीना है क्या? बस वही पैदा हो, जियो, मर जाओ, फिर कहीं और पैदा हो, जियो, मर जाओ, फिर कहीं और पैदा हो, जियो, मर जाओ. कहीं तो इस लाइफ साइकिल का एंड होगा, कहीं तो होगा. और वो एंड कब होगा? when you attain your purity. देखो, जीवन में यदि धर्म आए ना, जीवन में चेक पॉइंट रखना, आपके जीवन में धर्म आया है कि नहीं. धर्म क्रियाओं की मेरे को कोई लेना देना नहीं है. धर्म आया है कि नहीं ये चेक करना. आप कितनी धार्मिक क्रिया करते हो उससे धर्म का निर्णय नहीं हो सकता. इनफैक्ट कई बार तो धार्मिक क्रिया करने वाले लोग ज्यादा क्रोधी होते हैं, ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, ज्यादा परेशान रहेंगे. तो ये कोई धर्म का प्रतीक ही नहीं है. यदि आपके जीवन में वास्तविक रूप में धर्म आया है, रियली द रिलीजन हैज एंटर्ड इनटू योर लाइफ, देन यू हैव टू चेक. नंबर 1, तुम्हारे जीवन में पवित्रता बढ़ रही है कि नहीं. पवित्रता मीन्स प्योरिटी. मतलब क्रोध के समय में तुम थोड़ा शांत रह पाते हो. यहाँ भी वर्बली तो शांत रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना बोलते हैं हम लोग शांत रह पाते हैं. या अब जीवन में कोई भी सिचुएशन आती है तो वो प्रभु कृपा या एक्सेप्टेंस के अंदर में जाती है कि नहीं. या अभी भी हर जगह प्रभु मेरा ये दुख हरो, प्रभु मेरा वो दुख हरो, हमारी प्रार्थनाएं ऐसी है क्या? यू हैव टू सी. अगर धर्म आपके जीवन में आया है तो नंबर 1 पवित्रता बढ़ेगी, नंबर 2 प्रसन्नता बढ़ेगी. प्रसन्नता, आनंद, खुशी. यू विल बी स्टेइंग हैप्पी मोर. क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन से नहीं है कि बाहर से कोई मुझे सुखी कर देगा. एक साथ कितनी डेफिनेशन तुम्हारी कट गई. तो इसलिए एक अंदर में प्रसन्नता की, आनंद की, खुशी की, हैप्पीनेस की कांस्टेंट फीलिंग तुम्हारे अंदर चलती रहती है. और नंबर 3, अगर धर्म तुम्हारे जीवन में आया है तो तुम्हारा और परमात्मा के बीच का जो फासला है ना, जो अंतर है ना, वो थोड़ा कम होता फील होना चाहिए. परमात्मा जैसे गुण तुम्हें फील होना चाहिए कि मेरे अंदर भी वही परमात्मा है. जिसे परम कृपाणु देव ने कहा, सर्व जीव से सिद्ध सम. ऐसा आपको भी फील होना चाहिए कि हाँ, मैं भी परमात्मा हो सकता हूँ. अभी आपको ये लगे कि हम परमात्मा नहीं हो सकते, हम 5वें आरे में बॉर्न हुए हैं, मतलब रियल धर्म का प्रवेश नहीं हुआ. यदि धर्म का प्रवेश हुआ होगा तो यू कैन से कि हाँ ठीक है, द्रव्य मोक्ष नहीं मिलेगा, सिद्धशिला नहीं जाएंगे, लेकिन भाव से अपने भीतर परमात्मा को अनुभव कर सकते हैं. चेक इट. तुम्हारी धर्म क्रियाएं ये चीजें ला रही है. 3 पवित्र बने, प्योर. नंबर 2 प्रसन्न बने, ज्यादा से ज्यादा प्रसन्नता. और नंबर 3 परमात्मा को पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं. निकटता ऐसी लग रही है कि नहीं? अगर नहीं लग रही तो रीचेक, रीसेट योर एक्सेस. बात चल रही है हमारी धर्म के 4 आधार. और 4 में से आज हम कौन सा आधार कर रहे हैं? संवेग का मतलब क्या होता है? सही दिशा में गति उठ जाना. योर स्पीड इज इन राइट डायरेक्शन. ये कैसे उठती है? तो नंबर 1 प्रोसेस क्या है? संवेग का मीनिंग तो बताया, लेकिन प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है, ज्ञानी के वचन उत्साह पूर्वक सुनना. उत्साह. और ये उत्साह मुझे तो आपके लॉस एंजलिस का समाज में बहुत अच्छा लगा. उसके बाद हम सैन डिएगो भी गए तो वहां पर भी क्या उत्साह से सुनते हैं, उनके चेहरे बदल जाते, तालियां वगैरह सब बीच बीच में चलता रहता है सबका. इवन दिल्ली में भी ऐसे ही चलता है. अच्छा लगता है तुम लोग इतना उत्साह से जो सुनते हो. और मालूम है घटना क्या घटती है इस समय में? जब आप इतने उत्साह से किसी को सुनते हो तो किसी के शब्द तुम्हारी श्रद्धा बन जाते हैं. अभी तक श्रद्धा में नहीं गए थे, सुन के श्रद्धा नहीं होती, लेकिन जब आपको उत्साह आ जाता है ना, अब वो अपने आप श्रद्धा के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं. ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई ना कोई यदि सद्गुरु होना ही चाहिए. ऐसे सद्गुरु के प्रति तीव्र राग जो उसे बाहर की दुनिया के प्रति से काफी ज्यादा है. यानी at a call of a सद्गुरु they can leave aside everything and go to सद्गुरु. इसे कहा जाता है संवेग.
एक बार गुरु मुख से आज्ञा निकल गई तो बस उसी के प्रति सबसे ज्यादा राग है, और किसी के प्रति राग नहीं। ये मैं आप कोबा वाले लोगों के अंदर बहुत देखती हूँ। वेरी नाइस, इतना गुरु के प्रति का राग। और तीसरी बात, संवेग कैसे प्रकट होता है? जब भी हम कोई धर्म का अनुष्ठान, धार्मिक क्रिया, एनी स्पिरिचुअल रिलीजियस ऑब्लिगेशन कहो या रिलीजियस रिचुअल कहो, इसका अर्थ समझकर उसे करते हैं, अर्थ उसका मीनिंग समझकर हम वो कार्य करते हैं, तो उसका मतलब होता है संवेग अंदर बढ़ेगा। क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो? बिना मीनिंग समझे कोई भी क्रिया आप करते हो तो बिना अर्थ समझे करते हो, तो वो क्रिया कैसी होती है? झटपट किया और भागे, isn't it? लेकिन जब आप अर्थ समझकर उस अर्थ को रिलेट करते करते आप क्रिया करोगे तो उस क्रिया के अंदर उत्साह ही अलग होगा। अब चलो तुम्हारे जीवन में सद्गुरु नहीं है तो क्या, क्रियाएं तो है, समाज की डेरासर की क्रियाएं है कि नहीं है? तो उन रिचुअल्स का मीनिंग जरूर समझो, उसका अर्थ समझकर जब भी आप कोई क्रिया करोगे तो वो आपके अंदर उत्साह लाएगी। और ऐसी कितनी ही क्रियाएं हैं, मंदिर मार्गी अगर है, डेरावासी प्रदान है, तो उसको तो कितनी क्रियाएं मिली है। निस्सी से शुरू होकर आप बाद में जब बाहर निकलते हैं आवश्य सही बोलते हैं, तब तक देयर इज अ स्टॉक ऑफ सो मेनी रिचुअल्स। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें उन रिचुअल्स में भी बस पूरा खाना पूर्ति करने जैसा है, लेकिन उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है नहीं मालूम। मे बी शायद ओल्डर जनरेशंस को पता हो, लेकिन न्यू जनरेशंस आर नॉट अवेयर, isn't it? न्यू जनरेशंस आर नॉट अवेयर अबाउट द मीनिंग कि देरासर में जाकर ये सब करना, इसका मतलब क्या है, यही नहीं पता। इनफैक्ट कहो तो देरासर का मतलब ही नहीं पता। मंदिर क्यों है? आप लोग सब करते होंगे मंदिर का। मंदिर की जरूरत क्या है? मंदिर क्यों है? क्या इसका भी राइट आंसर है आप लोगों के पास? हम लोग मंदिर तो बना लेते हैं बड़े बड़े, लेकिन मंदिर की जरूरत क्या थी? भगवान महावीर ने किसी भी मंदिर को बनाने की कोई आज्ञा नहीं दी थी। किसी भी आगम के अंदर ऐसी कोई बात जो शुरुआत में है, उसके बाद तो जैसे जैसे टीकाएं आती गई तो डेरावासियों को भी नजर में रखकर मंदिर की बातें आई, लेकिन एक्चुअल ग्रंथों के अंदर मंदिरों का संविधान ही नहीं था। तो ये मंदिर क्यों खड़े हुए? क्या आप लोगों ने कभी सोचा मंदिर की जरूरत क्या है? जैसे एक मॉल है, उसकी जरूरत क्या है? आर यू क्लियर विद इट? मॉल की जरूरत क्यों होती है? मॉल की जरूरत क्यों होती है? शॉपिंग, विंडो शॉपिंग या रियल शॉपिंग। लेकिन मॉल की जरूरत शॉपिंग के लिए है। रेस्टोरेंट की जरूरत क्यों होती है? खाने के लिए। गार्डन की जरूरत क्यों होती है? घूमने के लिए, बैठने के लिए, वॉक करने के लिए। स्कूल की जरूरत क्यों होती है? पढ़ने के लिए। तो मंदिरों की जरूरत किस लिए होती है? हाँ, धर्म के लिए। ओके, एक जगह जहाँ पे आपको धर्म संबंधी एक जगह जहाँ आपको धर्म संबंधित सामग्री मिल सके। ओके, ठीक है। और बताओ। आत्मा की शुद्धि के लिए। आत्मा की शुद्धि के लिए। आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है? अंदर। और शुद्धि के लिए बाहर जाने का? नहीं, वो तो निमित्त है ना। हाँ, वो निमित्त है। ओके, भाव आलम्बन। ओके, ठीक है। और बताइए मंदिर की जरूरत क्या है? भगवान के गुण हम में आए। ओके, तो वो मंदिर में आके ही आते हैं, क्योंकि भगवान तो मैंने सुना है हर जगह व्यापक है। तो फिर ये मंदिर में पर्पस ऑफ मंदिर क्या है? पर्पस, मंदिर खड़े किए क्यों गए? क्योंकि भगवान के समय में कोई भगवान का मंदिर नहीं था, या भगवान महावीर के समय में आदिनाथ भगवान का मंदिर था, ऐसा कुछ है? कहीं पढ़ा ऐसा? था ही नहीं। पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर था क्या उस समय कोई? कितने थे पार्श्वनाथ भगवान के फॉलोअर्स? केशी स्वामी वगैरह भगवान पार्श्वनाथ के ही फॉलोअर थे भगवान महावीर के टाइम में। क्यों उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर नहीं बना दिया? क्यों नहीं बनाया? सारे के सारे मिल गए भगवान महावीर के अंदर ना, कोई भेद भी नहीं रखा। भले थोड़ा व्रतों का भेद आया, लेकिन वैसे कोई भेद नहीं रखा उन लोगों ने। मंदिर का पर्पस क्या है? See, as we are very clear about the purpose of restaurant, purpose of hotel,
Purpose of mall, purpose of garden, purpose of school, purpose of university, we are never clear about the purpose of temple. और शायद हम अपने बच्चों को कभी क्लियरली समझाते भी नहीं है कि ये मंदिर है क्या। उसको भी ये लगता है आओ थोड़ी देर झुको, ये करो वो करो और फिर चले जाओ। उसको कभी राइट पर्पस ही नहीं समझ में आता। आई टेल यू, मैं तुम लोगों की मान्यताओं को के अंदर थोड़ा विस्तार करना पड़ेगा। जो सोचते हो राइट है, पूजा के लिए हमें कोई सामग्री मिले, फिर शांति के लिए या आत्मा शुद्धि के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा यूनिवर्सल मीनिंग कोई भी मंदिर, कोई भी हिंदू टेंपल हो, क्रिश्चियन हो, मॉस्क हो या अपना जैन टेंपल हो, व्हाट इज द यूनिवर्सल मीनिंग ऑफ रेजिंग अ टेंपल? क्या मतलब क्या है? दो कारण है। पहला, जो मंदिर में जो मूल नायक होते हैं, मूल नायक, यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, मेन प्रतिमा, जो सेंट्रल प्रतिमा है, वो मेन प्रतिमा को देखते ही हमें ये ख्याल आना चाहिए मैं भी ऐसा बन सकता हूं। पहला पर्पस, कोई भी मंदिर खड़ा करने के पीछे दो उद्देश्य होते हैं। आप जैन परंपरा के हो तो जैन परंपरा के अंदर आप जो भी आदिनाथ भगवान अगर मूल नायक हैं आपके मंदिर में, तो आदिनाथ भगवान को देखते ही आपको ये निर्णय होना चाहिए मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। पूजा करने के लिए मंदिर नहीं बनाए गए थे, लेकिन जो पूज्य है उनमें और तुम में एक तार जोड़ने के लिए मंदिर बनाए गए थे। इसलिए अगर हिंदू कोई टेंपल है, वहां भगवान राम की प्रतिमा है, सेंट्रल प्रतिमा, तो उस सेंट्रल प्रतिमा को देखते ही तुम्हें ख्याल आना चाहिए वाह मैं भी भगवान राम जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकता हूँ। कृष्ण भगवान है, मैं भी कृष्ण जैसा बन सकता हूँ। और मैंने तो इन सबके स्पिरिचुअल डायमेंशंस रिकॉर्ड किए हैं। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? क्योंकि अगर हम जैन कम्युनिटी से बात कर रहे हैं तो कहेंगे हम राम जैसा नहीं बनना चाहते, लेकिन जैसे ही उन्हें आध्यात्मिक दृष्टिकोण मैं बताती हूँ कैसे हम भी राम बनना चाहते हैं। जैसे ही उन्हें श्री कृष्ण का आध्यात्मिक दृष्टिकोण बताती हूँ वो कहते हैं हम भी कृष्ण बनना चाहते हैं। कौन? हिंदू नहीं, जैन कहते हैं कि हम भी कृष्ण बनना चाहते हैं, क्योंकि फाइनली तो हर कोई क्या है? शुद्ध आत्मा ही है। हर कोई परमात्मा जैसी आत्मा ही तो है, बस उनका डायमेंशन स्पिरिचुअल हमने डिकोड नहीं किया। तो मंदिर का पर्पस क्या है? नंबर वन, जो भी मूल नायक है, केंद्रीय प्रतिमा है, वो केंद्रीय प्रतिमा को देखते ही आपको ये स्मरण में आना चाहिए मैं भी ऐसा हो सकता हूँ। और अभी हमारे स्मरण में क्या आता है? प्रक्षालन करना है, पूजा करनी है, ये करना है, वो करना, भी यही होता है। लेकिन एक्चुअली जब मंदिरों की स्थापना हुई थी तो इस कारण से हुई थी कि वहां की जो मूल प्रतिमा है उसको देखते ही तुम्हें तुरंत ये लगे इस मनुष्य जीवन में मैक्सिमम जो मैं प्राप्त कर सकता हूँ वो ये। समझ में आया? इस मनुष्य जीवन के अंदर तो मनुष्य हो कि नहीं हो उसमें भी डाउट है तो मनुष्य हो तो इस मनुष्य जीवन में कुछ हाईएस्ट अटेनमेंट की जा सकती है। तो क्या ये वो प्रतिमा ये है मैं ऐसा बन सकता हूँ। कभी तुम्हें ये देखते उल्लास नहीं आ जाएगा क्या? वाह मैं अंबानी बन सकता हूँ या मैं बिल गेट्स बन सकता हूँ। ये सब अपने मार्ग में नहीं है। नहीं, वो क्या है? इस जीवन जितना पुण्य है, इस जीवन जितना केवल शुभ का उदय है, लेकिन परमात्मा यानी सादी अनंत अनंत समाधि सुख के अंदर बस अब जहां से नो रिटर्न पॉइंट पर आप आ गए हो वो जगह, ओ वाह इस मनुष्य जीवन में मैं भी ये पूर्ण दशा प्राप्त कर सकता हूँ। इसका निर्णय, इसका कॉन्फिडेंस तुम्हें लाने के लिए मंदिरों की स्थापना की गई थी। नंबर वन। नंबर टू, वैसे तो प्रतिमा जिस आकार में बैठी होती है, जिस आकार में प्रतिमा होती है, तो वो प्रतिमा का जो आकार दिया जाता है, जैसे कृष्ण का टेढ़ा मेढ़ा है, भगवान राम का बो एंड एरो के साथ है, ये सब जो भी आकार दिया है ना उसी के अंदर उस दशा को पाने का मैसेज होता है। ध्यान से सुनो, जो भी आकार दिया है ना उस आकार आकृति किसी शेप के अंदर मंदिर बनाया ना, प्रतिमा जी बनाई ना, तो वो प्रतिमा के अंदर ही उस प्रतिमा जैसा बनने का पूरा मैसेज छुपा ही होता है। ऐसे हाथ पर हाथ धर के बैठे हैं, मतलब कर्ता भाव बिल्कुल छूट गया है। आंखें, अगर आपकी श्वेतांबर प्रतिमा है तो आंखें खुली है, दिगंबर है तो आधी बंद है, लेकिन दोनों में ही मतलब है।
कि जिनका पूरा ज्ञान, जिनके ज्ञान चक्षु उघड़ गए हैं, या फिर कहो कि एक तरफ वो संसार में है, आंखें आधी खुली है, तो दूसरी तरफ एक तरफ वो अपने स्वरूप आनंद के अंदर है। वैसे तो जो प्रतिमा की आकृति है, वह आकृति इटसेल्फ ही पूरा पूरा मैसेज डिकोड करती है, लेकिन अब हम लोगों की इतनी बुद्धि नहीं रही, इसलिए बीच में आचार्यों ने क्या किया, जो भी आचार्य भगवंत आए प्रज्ञाशील थे, उन्होंने पूरा एक रिचुअल से कोड ऑफ कंडक्ट दे दिया। अब वो रिचुअल्स के थ्रू वो आपको कैसे वैसा बन सकते हैं, उनका मैसेज दे रहे थे। समझ में आती बात? क्या कारण था? नंबर 1 कारण ये है कि इस मनुष्य जीवन में मैं भी इनके जैसा बन सकता हूँ। ये मंदिर खड़ा करने के पीछे पहला उद्देश्य। और दूसरा उद्देश्य क्या था? खड़ा मतलब मैं कैसे बनूं, कैसे मैं हो सकता हूँ, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया, लेकिन हाउ शैल आई अटेन दैट स्टेट? अटेन करने के लिए मैसेज वैसे तो डिपिक्टेड था पूरा प्रतिमा के अंदर, लेकिन हम प्रतिमा में से मैसेज नहीं निकाल पाए, हमारी इतनी बुद्धि नहीं रही, इसलिए काफी सालों बाद ये सब रिचुअल्स 300 साल पहले आए हैं। ये आपके जो पूजा के रिचुअल्स है ना, 300 साल पहले, नॉट मोर देन दैट, 300 से कम है पर ज्यादा नहीं है। प्रतिमा में से भी मैसेज डिराइव करने की क्षमता लोगों की कम हो गई ना, इसलिए फिर क्या हुआ, ये रिचुअल्स बनाए कि प्रभु मैं आपके सामने दीप धरता हूँ कि मेरे अंदर भी ऐसा ज्ञान का प्रकाश हो। प्रभु मैं आपके सामने धूप धरता हूँ कि मेरे कर्म भी धुएं की तरह उड़ जाए। प्रभु मैं चंदन घिस के आपके सामने ये सारे क्रिया आदि करता हूँ तो मेरे जीवन में भी शांति आए, कैसी चंदन जैसी शीतलता आए, ठंडक आए। प्रभु मैं पानी धरता हूँ, हर बार जो जो नैवेद्य धरता हूँ, मतलब प्रभु मेरी आहार संग न जाए। कितने सारे जो भी रिचुअल्स दिए ना, पूरे हम लोगों ने पूरा शिविर किया था इसके ऊपर कि कैसे एक एक रिचुअल का अर्थ यही है और कारण यही है। अर्थ तो छोड़ो, हर अर्थ के पीछे कारण यही है कि कैसे तुम भी भगवान जैसे बन सको, हाउ यू अटेन दैट स्टेट ऑफ गॉडहुड। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स when there is a place of just एक रिचुअल्स अपने हम कर रहे हैं, करना है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं किसी ने हमें कह दिया ये करोगे तो शुभ बंधेगा, शुभ बंधेगा तो स्वर्ग में जाओगे। पर भाई हमारी यात्रा तो मोक्ष की थी, स्वर्ग कहां से आ गया बीच में। लेकिन ये जो क्रिया वो भी समझे बिना क्रिया कर रहे हो, तो आज से तुम्हें पहले तो पर्पस क्लियर हुआ, मंदिर का उद्देश्य क्लियर हुआ। जैसे रेस्टोरेंट का उद्देश्य क्लियर है ना, वहां सोने नहीं जाते, वो खाने जाते हैं। तो ऐसे ही टेंपल का भी उद्देश्य क्लियर करो, वहां तुम रिचुअल्स करने नहीं जा रहे। नंबर 1 तुम क्या निर्णय देने जा रहे हो अपने आप को, उनका ऐसा बन सकता हूँ। कितनी खुमारी आ जाएगी हर बार के दर्शन के अंदर, कितना उल्लास होगा, वाह मैं भी ऐसा बन सकता हूँ। और हम जिसके बारे में बार बार ऐसा सोचते हैं ना, मैं ऐसा बन सकता हूँ, ऐसा बन सकता हूँ, साइकोलॉजी वर्क्स। आपने कभी बचपन में फील किया कि नहीं मालूम नहीं, मैंने तो बहुत बार फील किया ऐसा कि जो हीरो हीरोइन हमारे फेवरेट होते हैं ना, हमारे हेयर स्टाइल, हमारा बोलने का ढंग धीरे धीरे हमारा वैसा होने लगता है। कभी ऐसा फील किया आशीष प्रभु? जो भी अगर शाहरुख खान फेवरेट है तो थोड़ा थोड़ा हेयर स्टाइल हमारा शाहरुख खान जैसा होगा। तो ऐसे बार बार जिसको आप देखना शुरू करोगे और ऑटो सजेशन ये दोगे, क्या ऑटो सजेशन दोगे, मैं भी ऐसा हो सकता हूँ, अपने आप तुम्हारी मानसिकता उस तरफ ढलने लगेगी। चलो हम दुष्म काल के दुर्भागी लोग हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमें पूरा प्रोसेस दिया है कैसे बन सकते हो, कैसे एक एक कोई फूल भी धरने का हम मीनिंग बताते हैं, नैवेद्य धरने का मीनिंग बताते हैं, धूप धरने का मीनिंग बताते हैं। ये अष्ट प्रकारी पूजा में जो जो आता है, और नवअंगी पूजा में 13 स्थान पर तिलक, ऐसा ही होता है, नवअंगी पूजा और 13 जगह पर तिलक। ये 13 ही जगह क्यों 15 नहीं? भगवान तो रोमे रोमे पूजनीय है, तो क्यों 9 अंग में ही आप लोगों ने टीका लगाने की बातें की? क्यों आचार्यों ने हमें खाली 9 अंगी टीका 9 ही क्यों दिया? मालूम है, 9 तत्व की श्रद्धा, जो 9 तत्व है उसकी दृढ़ श्रद्धा, एक एक अंग में जो टीका हम लगाते हैं भगवान की जो
पूजा की विधि है। एक एक अंग के टीका के साथ साथ 9 तत्व की दृढ़ श्रद्धा मेरे अंदर आए ना, उसके लिए 9 अंगी पूजा होती है। 9 के बदले 10 अंगी क्यों नहीं? क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, भगवान तो पूरे ही पूजनीय है, लेकिन वाई ओनली 9? बिकॉज आचार्यों ने यही समझाया, 9 तत्व की दृढ़ श्रद्धा यानी परमात्मा होने का मार्ग नहीं। 9 तत्व की श्रद्धा यानी सम्यक दर्शन। तत्व की श्रद्धा, 9 तत्व की श्रद्धा, यही तो सम्यक दर्शन की अलग अलग डेफिनेशंस है। उसमें एक डेफिनेशन ये भी है, जब हमें 9 तत्व की दृढ़ श्रद्धा परमार्थ श्रद्धा हो जाए, उसी को सम्यक दर्शन कहा जाता है। इसीलिए 9 अंग की पूजा कि हमें एक एक तत्व की प्रभु दृढ़ श्रद्धा हो। पुण्य से मोक्ष नहीं होगा, पुण्य तत्व अलग है, मोक्ष तत्व अलग है। मंदिर का मीनिंग समझ में आया? क्यों मंदिर खड़ा किया गया, पर्पस समझ में आया? क्यों? नंबर 1, मूल नायक जैसे हम भी बन सकते हैं। रोज आके जितनी बार भगवान के सामने हो ना, उनके सामने झुको कम। ये मेरा ढंग है, मैं झुकती कम हूँ, लेकिन उन्हें देख देख के बार बार यही अंदर में बात जाती है, तुम जैसा मैं भी बन सकती हूँ, और मैं बन रही हूँ। ऐसा मुझे फील भी होता है, ऐसा फील होता है हम लोगों को। और क्यों ना हो, जब तुम सच में तुम खाना खाते हो तो तुम्हें फील नहीं होता पेट भरा, तुम नहाते हो तो तुम्हें फील नहीं होता, आप लोग नहाते हो तो आप लोगों को फील नहीं होता ताजे हुए। तो हम धर्म करें तो हमें क्यों ना फील हो कि हम परमात्मा जैसे हो रहे हैं? क्यों ना हो? या तो हमारे करने के ढंग में कोई गड़बड़ी है, इसलिए नहीं फील होता। तो वो गड़बड़ी कौन सॉर्ट आउट करेगा? कोई सदगुरु करेगा। वो गड़बड़ी सॉर्ट आउट करने के लिए ही शायद तुम लोग इस तरह हम लोगों को इनवाइट करते हो कि आए और हमारी शास्त्रों के प्रति गड़बड़ी और क्रियाओं के प्रति जो भी हम लोगों ने इतना मिस इंटरप्रेट कर रखा है हर चीजों को, भगवान को भी हमने क्यों रखा है पता है? खाली मैं कई बार सत्संगों में कहती हूँ, भगवान की अभी हमारा रिलेशन भगवान के साथ कितना है? नंबर 1 इजीएस्ट भिखारी का, और नंबर 2 सौदागर का। या तो हम भगवान के पास भिखारी बनकर जाते हैं, भगवान दे दो दे दो दे दो, ये दुख है इसको हटा दो, भगवान ये तकलीफ है इसको हटा दो। या तो भी हमारा रिलेशन भगवान के साथ भिखारी का है, और या फिर अगर थोड़ा बहुत धन संपत्ति इत्यादि है हमारे पास तो सौदागर का है। प्रभु आप ये मेरा काम कर दोगे ना तो ये पूजा पढ़ाऊंगी, ये काम कर दोगे ना तो ये इतना दान में इस सेंटर में लिखाएंगे। हम लोग ये इसमें पढ़े हैं। अरे भाई तुम भगवान हो सकते थे, इसके लिए तो भगवान को रखा था वहां, और उसकी जगह कहाँ भिखारी बन गए। इसलिए मंदिरों का राइट पर्पस जानो। नंबर 1 हम भी वैसे हो सकते हैं, और नंबर 2 कैसे हुआ जाए उसका पूरा संदेश वैसे तो उस मुद्रा में ही था। लेकिन तुमने कभी भगवान की बूढ़ी प्रतिमा देखी? बूढ़ी प्रतिमा नहीं। जबकि भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ होगा तो वो ही वॉज नॉट सो यंग। इनफैक्ट आदिनाथ भगवान की अगर मैं बात करूं तो 84 लाख पूर्व का आयुष्य, और उसमें 83 लाख पूर्व, 83 लाख पूर्व तो गृहस्थ आश्रम में, फिर 1000 साल साधना, और उसके बाद केवल ज्ञान। तो ऐसा समझो कोई 84 इयर्स का है, 84 इयर्स, और 83 इयर्स तक तो वो अभी गृहस्थ आश्रम में लास्ट 1 ईयर खाली साधना करी, तो वो बूढ़े होंगे कि यंग होंगे? सोचो तुम। शरीर से बूढ़े हो गए। हाँ भाई, अरे पर कैसे होंगे? शरीर से बूढ़े होंगे। लेकिन कभी आदिनाथ भगवान की बूढ़ी प्रतिमा देखी? सारे भगवान जितने भी हैं, इवन महावीर भगवान को, काशनाथ भगवान को, या बाकी जितने भी भगवान है, सबको यंग नहीं थे जब उन लोगों ने एकदम दीक्षा और ये केवल ज्ञान आदि प्राप्त हुआ। भगवान महावीर भी 42.5 इयर्स, फिर केवल ज्ञान, और निर्वाण हुआ तब तो 72 इयर्स। लेकिन हमने प्रतिमाएं सारी किसकी रखी है? प्रतिमाएं यंग, यानी सिंबल दे रहा है वो प्रतिमा कि धर्म जीवन में लाना है। तो जैसा यूथ का उत्साह होता है ना, एक यंग व्यक्ति का उत्साह, यंग व्यक्ति को का दाव पर लगाने की तैयारी, एक यूथ में दाव पर लगाने की कितनी तैयारी है, वैसी तैयारी तुम्हारे जीवन में होगी ना, तब तुम भगवान जैसे बनोगे। यूथ इज अ आइकन ऑफ, यूथ किसका आइकन है? दाव पर लगा, निडर होता है यूथ। यूथ कैसा होता है? डरपोक नहीं होता,
सच में जो जवान है निडर होता है, कुछ भी दांव पर लगाने के लिए तुरंत तैयार होता है, ऊर्जा से भरा हुआ होता है, ऊर्जा से भरा होता है, शक्ति का विस्फोट हो रहा होता है। बस तुम्हारे जीवन में भी जब ये सब गुण आएंगे ना, मतलब ये भगवान होने के लिए क्वालिफिकेशंस है। एट एनी एज, एट एनी एज, एट द एज ऑफ 60 और 70 और 80, लेकिन ये सब चाहिए। इसलिए मैसेज तो मिल रहा था प्रतिमा से ही, लेकिन हम प्रतिमा से मैसेज नहीं निकाल पाए, तो आचार्यों ने क्या किया 300 साल पहले, पूरे रिचुअलिस्टिक ढंग से, अब निस्सी ही, कल बात करेंगे थोड़ी और सूत्रों पर, लेकिन एक एक क्रिया, रिचुअल जो भी भगवान से, मंदिर से संबंधित थी, वो हमें प्योर करने के लिए थी। वो भगवान को प्योर करने के लिए या भगवान को पूजने के लिए नहीं थी, वो तो प्योर ही है, लेकिन वो एक एक क्रिया से आप प्योर होते जाओ, उसके लिए हम अर्थ नहीं समझे, इसलिए कभी संवेग प्रकट नहीं हुआ। संवेग के लिए 3 प्रोसेस। नंबर 1 क्या? उत्साह पूर्वक ज्ञानी के वचनों को सुनना। नंबर 2 क्या? प्रसन्नता। हाँ? प्रसन्नता। राग गुना, गुरु के प्रति अपने से हायर जो सदगुरु है उसके प्रति पौद्गलिक पदार्थ से ज्यादा राग, यानी उनके कहने पर ये छूट जाए, तुरंत छोड़ सको, इतनी हिम्मत हो, ये राग, ये संवेग लाएगा। और तीसरा क्या है? धार्मिक क्रियाओं का, धार्मिक क्रियाओं का जो हेडक्वार्टर क्या है? टेम्पल। तो धार्मिक क्रियाओं का हेडक्वार्टर क्या होता है? टेम्पल्स, मंदिर। उन मंदिरों का ही स्वरूप हमें क्लियरली नहीं पता, तो आगे तो मंदिर की क्रियाओं का क्या स्वरूप पता होगा। तो हर धार्मिक अनुष्ठान का मीनिंग हमें पता होगा, तो आपको उत्साह आएगा। अब आप कल से भगवान को देखोगे, छोड़ो अभी से भगवान को देखने जाना जरूर, और जाकर अंदर में क्या भाव रखना है? मैं भी आपके जैसा हो सकता हूँ, और बहुत जल्दी, नॉट वेरी लॉन्ग, बस आपके जैसा हो सका। कैसा उत्साह आएगा? उत्साह आएगा कि नहीं आएगा? तो संवेग के खाते में जाएगा कि नहीं? तुम्हारा संवेग स्ट्रॉन्ग होगा कि नहीं? That's it. जैसे ही संवेग जीवन में आता है, इसका परिणाम हम क्या देखते हैं? रिजल्ट। उत्तराधन सूत्र में ये बातें की है। रिजल्ट क्या देखते हैं? रिजल्ट हम ये देखते हैं, हमारे कषाय मंद हुए। अब आप पूरा दिन उत्साह में रह रहे हैं, तो कषाय अपने आप कम होंगे कि नहीं? हर एक में तो मैंने उत्साह की बात की, संवेग के 3 जो भी प्रोसेस बताए, तीनों में उत्साह की बात करी कि नहीं? सुनने के समय में उत्साह, परमात्मा का दर्शन के समय में उत्साह, और ज्ञानी के प्रति तीव्र राग, और राग में भी उत्साह तो होता ही है। तो जैसे ही ये उत्साह में जीवन जीने लगोगे, तो उसका परिणाम क्या होगा? संवेग आएगा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? कषाय, क्रोध आदि अपने आप जाएंगे। अब आप जिंदगी भर माला जपते रहो कि मेरे को क्रोध नहीं चाहिए, क्रोध नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, कुछ नहीं होगा। करना क्या है? क्रोध नहीं चाहिए, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू? काम सारा कहाँ करना है? कहाँ करना है? संवेग के अंदर। प्रोसेस जो दिया ना, उत्साह पूर्वक सुनो, समझ पूर्वक क्रियाएं करो, और ज्ञानी के प्रति तीव्र राग, संसारिक पदार्थों से भी ज्यादा, वो करने लगोगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अपने आप आपका क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चारों कषाय हल्के, क्षीण, मंद पड़ते जाएंगे। समझ में आई बात? जैसे ही संवेग के प्रोसेस में, प्रक्रिया में आप गुजरते हो, तो परिणाम ये है कि आपका क्रोध आदि कषाय कम होगा। मैं यहाँ बैठी बैठी गाती रहूं अपने कमरे में, रूम में बैठी बैठी, मुझे फ्रेश फील करना है, फ्रेश फील करना है, तो फ्रेश फील करना आप कहोगे, परिणाम है गो एंड टेक अ शावर। क्या कहोगे आप? क्या कहोगे? गो एंड टेक अ शावर। उसका जो रिजल्ट है वो है फ्रेश। लेकिन मैं गाती रहूं खाली नहीं, मुझे फ्रेश फील करना है, उससे मैं फ्रेश हो जाऊंगी। ऐसे ही हम मनुष्य जीवन में आकर सो कॉल्ड धार्मिक लोग जो होते हैं, वो बहुत बोलते हैं आप क्रोध नहीं चाहिए हमको, अब हमको क्रोध कम करना है, पर तुम ऐसे नहीं कर पाओगे। इट्स अ रिजल्ट। जैसे फ्रेश होना एक रिजल्ट था ना, ऐसे क्रोध नहीं होना ये भी एक दशा है, एक स्थिति है, और उसकी प्रक्रिया कहाँ है? पूरी संवेग के अंदर। समझ में आ रहा है? जैसे कषाय विजय में भी हमने किया था, पूरा क्रोध विजय की प्रक्रिया क्या थी, वहां और डिटेल्स में हमने बात की थी। अभी तो यहाँ पहला सत्संग है, तो मैं बहुत ब्रॉड बातें कर रही हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूजन तो नहीं होती?
एनी क्वेश्चन टिल नाउ? नहीं। परिणाम क्या होता है? नंबर 1, क्रोध आदि कषाय हमारे मन पड़ते हैं। नंबर 2, अनंतानुबंधी कषाय। अनंतानुबंधी समझते हो? वही अनंतानुबंधी कषाय। नंबर 2 नहीं, नंबर 1 में ही रखो इसे। अनंतानुबंधी की कैटेगरी के जो भी कषाय है अब हम नहीं बांध सकते। संवेग का यह परिणाम। दूसरा उत्तरार्जुन सूत्र में लिखा है हमारे धर्म के प्रति की श्रद्धा मजबूत होती है। धर्म के प्रति जो श्रद्धा है हमारी मजबूत होती है। अभी तो हम लोगों ने सुना है कि धर्म मोक्ष तक पहुंचाता है और मोक्ष यानी परम सुख, लेकिन अंदर में संदेह भरा पड़ा है। Isn't it? कितने ही आप लोगों की एज के भी लोग भले ही सालों से मंदिर आदि की क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन भीतर संदेह भी बना है कि सच में ही धर्म से, इस प्रकार के धर्म से मोक्ष होगा। आप जिस ढंग से धर्म करते हैं ना, मैं ही कह दूं मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि समझे बिना सारा कुछ किए जा रहे हो। समझ कर इतना करो ना तो भी मोक्ष का कारण बने, लेकिन बिना समझे इतना सारा कर रहे हो, मोक्ष का कारण नहीं बन सकता। इसलिए उत्तरार्जुन सूत्र में लिखा जो इस प्रकार के संवेग में प्रवेश करता है वो तीसरे भाव में मोक्ष जाता है। उत्तरार्जुन सूत्र में 3rd भाव में इस प्रकार से होना चाहिए, वो तीसरे ही भाव में मोक्ष में जाता है। नंबर 2, उसके धर्म के प्रति की श्रद्धा दृढ़ होती है, और नंबर 1, उसका अनंत अनुबंधी कषाय कम होता है। कोई प्रश्न? अभी मैंने एक सूत्र समझाया है। कल के सत्संग के अंदर, कल 2 सत्संग है, कल 2 है ना, 2 सत्संग में बाकी के 3 सूत्रों के ऊपर भी बात करेंगे। समझ में आई? उत्तरार्जुन सूत्र चैप्टर 29, और उसके अंदर कितने सूत्र हैं टोटल? 73 में से एक सूत्र पर बात की है खाली अभी, और वो इतनी डिटेल्स रखी हुई है उसके अंदर, और इतना साइंटिफिकली सब कुछ भगवान ने कॉज एंड इफेक्ट, कारण कार्य सिद्धांत के अकॉर्डिंगली सब कुछ डिवाइड किया है। कोई प्रश्न हो तो 2-3 मिनट है हमारे पास, आप पूछ सकते हैं। એક ક્વેશ્ચન છે પ્લીઝ। કે તમે અત્યારે વાત કરી ને કે મૂળ નાયકને જોઈને આ ભાવ કરવાના, તો બીજા બીજે ભગવાન હોય છે તો એનું તમે કેમ ના કરી, ખાલી મૂળ ભગવાનની કેમ વાત કરી? કારણ કે આપણા મંદિરમાં છે ને જે રીતે હવે પ્રતિમાઓ આવી ગઈ છે, એમાં દેવ દેવીઓની પ્રતિમાઓ પણ આવી ગઈ છે। ના ના, એટલે બાજુમાં બી બધા લગભગ હા, બાજુમાં જો વિતરાગ પરમાત્મા હોય તો બરાબર જ છે। તો કોઈ બી પ્રતિમા, વિતરાગ प्रतिमा जो आ બધા જે અલગ અલગ ભગવાનના દરબાર આપણે લાંબા કર્યા ને, આ બી બધું આપણી મતિ કલ્પનાએ કર્યું છે। શાસ્ત્રમાં આજ્ઞા ઓન્લી 1 મૂળ નાયકની હતી, એની બાજુમાં આપણને એમ થાય કે બધાનો સમન્વય કરી લઈએ, દિગંબરને મૂકી દઈએ ને શ્વેતાંબરને મૂકી દઈએ અને આપણે મૂકીએ છે, પણ આ બધું શાસ્ત્રને માન્ય નહોતું। એટલે મેઇન મૂળ નાયક જ હતા। પહેલા તો મૂળ નાયક જ હતા, એક જ પ્રતિમા વોઝ અલાઉડ, અને એટલે જ કહેવામાં મારે આવે કે મૂળ નાયકને જોઈને તમને એવું લાગવું જોઈએ કે હું બનીશ। બીજી મારું ક્વેશ્ચન એ છે કે ઘણી વખત એવું સાંભળવામાં આવે, મારી એવી સમજ છે કે આપણે જે ધજાઓ ચડાવીએ તો એમાં એક અર્યંતની હોય ને બીજા 2 સિદ્ધની હોય, તો એમાં એ શું? આ જે પ્રતિમાઓ છે વિતરાગની જસ ફાઇન, પણ બીજી દેવદેવીઓની રાખીએ તો એને લીધે એમની અસર ના થાય કે વિતરાગની? જો અગર આપણે એમ તો હું આપણે કહું ને, મંદિર જે શાસ્ત્રોમાં મંદિર નિર્માણની વાતો છે ને, એમાં બધું લખેલું છે, અને એમાં વિતરાગી દેવને છોડીને બીજા બધા, ભલે સંકેતી દેવ હોય, પણ જો એ પણ ભગવાનની જ્યાં દ્રષ્ટિ પડતી હોય એટલા એરિયાની અંદર આવે તો અશાંતતાનું કારણ જ છે। મૂળ નાયકની પાસે, એટલે ત્યાં ઇન્ડિયામાં તો જે રીતે અમારા મંદિર હોય તો મૂળ નાયક ગભારાની અંદર જ હોય, પણ અહીંયા હું હવે યુએસ તરફ ને બધે આ લંડન ને બધે જોઉં છું તો એક જ તમારે ગભારા જેવું કોઈ સિસ્ટમ નથી હોતું, બધું એક જ સાથે હોય છે। તો એ રીતે મૂળ શાસ્ત્રો ના પડતા હતા, પણ પછી ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ યર્સ એ લોકોએ બધું ફેરફાર કર્યું। વિતરાગીને કોઈ અશાંતતા થતી જ નથી, મેક શ્યોર, કારણ કે વિતરાગ થઈ ગયા એમને કોઈ અશાંતતા નથી, પણ તમે જે ભાવથી એને પૂજો છો ને એ અશાંતતાનું કારણ બને। એટલે આપણે હવે જેમ કોઈ કહે કે પદ્માવતી દેવી હોય તો આપણા કંઈ પણ દુઃખ હોય એ બધા આપણે પદ્માવતી દેવી માટે ખાસ કહેવામાં આવે કે કોઈ પણ કષ્ટ નિવારણ દેવી છે જીવનમાં। યા ઘંટાકણ મહાવીર કષ્ટ નિવારણ દેવ છે। તમે વિતરાગના પ્રેમિસીસમાં આવો
વિતરાગનું પ્રેમિસિસ છે આ ટેમ્પલ, અને આવો એમાં લક્ષ તમને વધારે પદ્માવતી દેવી અને આ બધા ધર્ણેન્દ્ર દેવ કે પછી ઘંટાકણમાં આવે એનું થાય તો તમે આ સાધના કરી રહ્યા છો. દેવ દેવીઓ કોઈ સાધના નથી કરતા, પણ આપણા જે વિચાર છે ને કઈ રીતે આપણે આવીએ છીએ. આપણે ઘૂસીએ તો છે પ્રેસિડેન્ટના હાઉસમાં ઘૂસીએ, પણ આપણને મહિમા ક્લર્ક નહીં હોય તો શું થાય? આપણું રિલેશન પ્રેસિડેન્ટ સાથે ક્યારે પણ સ્ટ્રોંગ નહીં થાય. આપણે હજી કષ્ટ નિવારણમાં લાગ્યા છે. આપણે તો વિતરાગ બની જાવ તો કષ્ટ આપોઆપ વયા ગયા. જીવનનો એક કષ્ટ જશે ને બીજો નહીં આવે એની કોણ ગેરંટી લે? એક કષ્ટ જશે જીવનનો અને બીજો નહીં આવે એની કોણ ગેરંટી લે? ખાલી વિતરાગ દશા લે. વિતરાગી ન લે, વિતરાગ દશા. જ્યાં એવી દશા આવી જાય ને અંદરમાં, એના પછી કોઈ કષ્ટ જ નથી. ભગવાન આવીને કોઈ કષ્ટ હતું? તેજુલેશા કે કાંઈ કોઈ કષ્ટ થયું નહીં થયું, કારણ કે દશા એવી આવી ગઈ. એટલે દેવ દેવીઓને કોઈ અસાધના નથી, પણ અસાધના આપણને છે કે આપણે લક્ષ્ય મુખ્ય થઈ જાય, વિતરાગનું છૂટી જાય અને દેવ દેવીઓના લક્ષ્ય. અને મેં તો ઘણી જગ્યાએ જોયું છે, ઇનફેક્ટ અમે દિલ્હીમાં જ છે, વિતરાગીના ભંડારામાંથી જેટલા પૈસા ન નીકળે ને એનાથી વધારે પદ્માવતી દેવીના ભંડારામાંથી નીકળે. ઇટ સો હેપન્સ. કારણ કે લોકોને મહિમા જ નહીં થતી જાય છે. વિતરાગીની બોલી ઘીની જેટલી ન જાય ને એનાથી વધારે આ લોકો ત્યાં ઘીની આરતી માટેની બોલી આ લોકોની જાય. તો એનાથી મિથ્યાત્વ ગાઢ થાય? બિલકુલ પ્રગાઢ થાય. બિલકુલ. તમારું લક્ષ્ય ચૂકાઈ ગયું. મિથ્યાત્વ એટલે શું? ખોટી સમજ. ખોટી સમજ એટલે શું? ખોટી શ્રદ્ધા. બહારમાંથી સુખ મળી જશે. અને આ વિતરાગીઓને છોડીને જે આપણે દેવદેવીઓને પૂજવા માંડ્યા છે એની પાછળમાં લક્ષ્ય શું છે? બહારમાંથી સુખ મળે એના માટે જ તો કરી રહ્યા છે. ટોટલી મિથ્યાત્વનું પોષણ છે. હા, એ બધા દેવ દેવીને અમને કૃપાળુ દેવી એક નવી દ્રષ્ટિ આપી કે એ બધા દેવ દેવીઓને પણ તમે પૂજો. સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ કરીને. સર્વ જીવ એ પણ તો જીવ જ છે ને. પદ્માવતી દેવી હોય કે ઘંટાકર્ણ હોય કે કોઈ પણ હોય, એ બધા બી તો જીવ છે. એને સિદ્ધ સમજીને એને પૂજો, એની સામે નમન કરો, બરાબર. પણ હા, હું તમારા જેવો બની જાઉં એ લક્ષ્ય ન હોય. લક્ષ્ય કોના જેવો? ગુડ ક્વેશ્ચન્સ. હું એન્કરેજ કરું, જે બી જગ્યા જે સેન્ટરમાં જાઉં ને ત્યાંના લોકોને આઈ સ્પેશિયલી એન્કરેજ ટુ કમ અપ વિથ યોર ક્વેશ્ચન્સ. એટલે તમને જે પણ ભ્રાંતિ હોય, ભ્રમણા હોય, તો મારી પાસે અગર એનું સમાધાન હશે તો હું ચોક્કસ તમને સમાધાન આપીશ. દેવ ગતિ પણ એક ગતિ છે, 4 ગતિમાંની એક ગતિ છે. એ લોકો મનુષ્ય ગતિને ઝંખે છે, દેવ ગતિ. તો આપણે એમની આગળ શું માંગવાનું? એવું છે ને, આપણું થોડું દર્શન મોહનીય મંદ હશે ને તો આપ આ વાત સમજી શકો છો. પણ જેનું દર્શન મોહનીય હજી બહુ પ્રગાઢ હોય ને એને એવું જ લાગે કે આ દેવ દેવીઓને પૂજવાથી આપણું બધું કાર્ય થઈ જાય એવું લાગે. અને આ તો ખૂબ સત્સંગ સાંભળીને, ખૂબ સાચો અભ્યાસ હોય ને ત્યારે દર્શન મોહનીય મંદ પડે અને આપણને આ બધી ભ્રાંતિમાંથી બહાર કાઢે. ને તો ત્યાં સુધી તો ભ્રાંતિઓ રહેવાની જ છે. કારણ કે હજારો વર્ષથી આ દેવ દેવીઓ છે અને આપણા મંદિરો અને વિતરાગની મૂર્તિ પર કેટલા હુમલા થયા છે, યમનોને ખંડિત કરી છે. તો એમનામાં એટલી શક્તિ હતો તે અટકાવી કેમ નહીં શકે? એવું જ છે ને. એટલે એમને પૂજવાનું શક્તિ માટે નથી. જો આજનો જે સમાજ શાસનના રક્ષક કહેવાય છે. બીજું દેવ દેવીઓ શાસનના રક્ષક કહેવાય. રક્ષા કેમ નથી કરતા જ્યારે યમનના આક્રમણો આવે? બરાબર છે. આટલા મુગલ ઇન્વેઝન થયા અને બધી પ્રતિમાઓ ગોખલામાં નાખી દેવી પડી, ખંડિત કરી, બધું થયું. એટલે આ બધું એ શાસનની રક્ષા માટે છે દેવ દેવી. પણ અત્યારમાં હાજર ક્યાં છે? એટલી આપણી પ્રતિમાઓની અંદર એ શક્તિ છે ક્યાં? આપણે પૂરી છે ક્યાં કે આપણને રક્ષા કરવા આવે? એટલે આ બધું જસ્ટ મિથ્યાત્વ છે. बोलो. आप बोल रहे थे कि गुरु की महिमा होनी चाहिए तो राइट डायरेक्शन लेके जाने, राइट गति पकड़ने के लिए. तो पता कैसे चले कि मेरे लिए सही गुरु कौन है? ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल होता है कि हमें पता कैसे चले कि मेरे लिए राइट गुरु कौन है. आई थिंक टाइम हो गया. हम इस क्वेश्चन को कल शुरू करें. मैं इसी बात से कल, इसी टॉपिक से कल शुरू कर देंगे. आप आएंगे ना? लेकिन कल मुझे कमिटमेंट ले लेना पड़ेगा पहले. ओके. और गुरु को पहचानने की अपनी पात्रता होनी चाहिए. वो अपनी पात्रता है ये कैसे पता चलता है? ये बात बिल्कुल
जब मैं बात करूंगी इस टॉपिक के ऊपर तो मैं पात्रता की भी बात करूंगी, सब चीजों की बात करूंगी, क्योंकि बिना गुरु के અમે લોકો ગાતા હોઈએ જેમ આપણે સવારે દેવવંદન કરીએ એમાં બી ગાઈએ કુંભે બાંધ્યું જડ રહે જડ બિન કુંભ ન હોય, જ્ઞાને બાંધ્યું મન રહે ગુરુ બિન જ્ઞાન ન હોય. વિધાઉટ ગુરુ જ્ઞાન ની માહિતીઓ મળશે, મતલબ ઇન્ફોર્મેશન્સ મળશે, પણ ગુરુ વિના જ્ઞાન તો ચાલુ જ નહીં થાય. જ્ઞાન ગુરુના આવાથી ચાલુ થશે. આ ઉપરથી આપણે કાલે વાત ચાલુ કરશું. ઓકે? હા, પરોક્ષના પ્રત્યક્ષનું થોડું કાલે સમજાવજો. પરોક્ષ એટલે જ્ઞાન કે ગુરુ? ગુરુ, બિલકુલ. પરોક્ષ ગુરુ અને પ્રત્યક્ષ ગુરુ. બાય ચાન્સ મારાથી મિસ થાય ને તો યુ કેન ઓલવેઝ રેઝ યોર હેન્ડ એન્ડ આસ્ક ધ ક્વેશ્ચન. ઓકે, આઈ વિલ ગિવ યુ ધેટ સ્પેસ. બહુ જરૂરી છે. જે જૈન સેન્ટરમાં હજી ગુરુની મહિમા જ નથી થતી તો એમનો વિકાસ એટલે આધ્યાત્મિક વિકાસ નહીં થાય, એ વસ્તુ નક્કી છે. હેવ સમ ગુરુ ઇન યોર લાઈફ. આટલી વાત સુધી શાંતિથી બેસવા માટે, સાંભળવા માટે થેન્ક યુ સો મચ. અને કોઈ પણ વાત કહેવામાં કોઈ અવિનય અભક્તિ થયો હોય તો મેં ક્ષમા. જય થેન્ક યુ બેન પ્રભુ. આજે એકવાર ઉદાહરણ સૂત્ર